बुलाए हैं. So let me welcome Dr. Mitra and his team member, Dr. Bhattacharya. So Dr. Mitra will I request you to just about the organization, but let me share with you चीफ सेक्रेटरी सर के साथ आप दोनों ने काम किया हुआ है और चीफ सेक्रेटरी सर ने बहुत अच्छा बताया और बताया कि उसके बाद आप भी कुछ अच्छा इनिशिएटिव करने लगे और कुछ एग्जांपल्स दे रहे थे चीफ सेक्रेटरी. मैं याद नहीं कर पा रहा, बताऊँ मुझे याद है किस प्रकार से आपका जो है काम करने का स्टाइल और उस प्रकार का. तो चीफ सेक्रेटरी सर ने ये मैंडेट दिया था कि हम इनको आपको सुने और इसका क्योंकि जिस तरह से आपकी काम करने की शैली युक्ति के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. केवल जो है अपनी इच्छा से जो है उसके लिए नहीं आए हैं कि कोई इनको चाहिए कुछ भी कर सकते, केवल हेल्प करने आए हैं. जो कंसर्न विभागों के साथ इनका जिस प्रकार का है उनको हमने रिक्वेस्ट किया है. तो पहले मैं कहता हूँ विभाग में आपको इंट्रोडक्शन करें. मैं नरेंद्र भूषण सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज में. सर कुमार मलिक, स्पेशल सेक्रेटरी आईटी और इंडस्ट्रीज. गुड मॉर्निंग सर, मैं जॉइंट डायरेक्टर अजंता प्लानिंग. नमस्कार सर, मेरा नाम तरुण पंडित है, रिसर्च ऑफिसर प्लानिंग डिपार्टमेंट. गौरव विशेष सचिव परिवहन. तो यही डिपार्टमेंट आपने बनाए थे, आप थोड़ा सा I want to begin with a note of thanks from IT and electronics. Special gratitude to the Principal Secretary, Mr. Bhushan. It is not working actually. ये ऑन नहीं होगा, वो यार ऑन कर दो. ये आप ध्यान से सुनेंगे तो सुनेंगे. Okay, and so because of all kind of kind word with the chief has spoken to him, we worked together in the industry for a long time. Both as directors in the police division and also as a foreign division. We initiated a number of path-breaking IT initiatives there, making some of the early IT initiatives. Now the background was that he is also an IT person because he's from IT Kanpur, all of you know it. And I also from IT Delhi and the first scholar of the governance. So therefore we had a very good team to work with. That probably the background actually. Coming to the organizations that we stand research. We are basically think tank. We are not a commercial organization at all. Right? It was set up by this gentleman, Dr. J.J. Bhattacharya, and IIT Kanpur, I'm in Calcutta, and a PhD in computer science from IIT Delhi in 2009, because it was very apparent at this particular point of time that digitalization is something which is irreversible and will be engulfing the entire society at large and governments in particular. That was the purpose and vision with which we set up the Center for Digital Policy Research as a society. And now we are wholeheartedly doing research and also a number of policy initiatives to assist the governments across the country to take forward the digitalization in a big manner, and particularly award some of the initiatives that the government has taken. One of the things we have circulated, you have a look, that was our last research, the technology policy regime in India. What we have done, we have undertaken a research and the review of the technology initiative and the policy initiative by the states on the 5 or 6 critical emerging technologies, starting from artificial intelligence, quantum computing, drone technology, IoT, blockchain, and so on and so forth. We can have a look, right? But it was not our objective to make an interested comparison. That was not our objective. We wanted to cap as is where is basis of the state. So this will build an idea of what we do actually, what we do for this part.
So this is thanks to all of you for sparing your time to come and etc. We'll be sharing a very few contemporary researches that we have done from the C-DEP, right? Both on the technology front and as well as on the social initiative front that is your objective, so that you can think about if possible when any policy initiative in this area is possible that you can. Particularly progressive states like Uttar Pradesh, which is on a big way going on the technology. Right from an international airport down to the ITS cities, 5-6 cities, all originate from this particular state. In fact, it's one of the champion states on the ITS. So if some of the policy initiatives we feel that can be initiated, that will be great. That was the objective, and we are always there to help. And as you rightly said, we haven't come to ask anything from you. We don't need it, honestly speaking. We come just to ask it, because I myself spent about 40 years in civil service. Before I joined Jodhpur as a professor, I was advisor and joint secretary, police of the Ministry of Home Affairs, where both of us worked on that time. So with this agenda, I will request my founder and president of the city to speak few words, and then Sharad, you just read the review to talk about the violation. Before you तो start. आपका जो लेटर था उसमें you had talked about 3 initiatives. Actually, हमने तीन departments बनाए. It's all right, we'll talk It was about it. mentioned in your letter. So I see some of these are directly related to us also. But in the letter you mentioned, I think transport. Will be presentations, will be restricted to. That's all fine. This act. But this is very good. I will read it, and I think we as IT department will need further. Because that day we actually somehow we felt that basically it is more useful for them. No, I mean, before he goes, actually, there is another research I was mentioning. Here में पूरा proposal सब charge के लिए आपको This is also. Okay. Here, what we have tried, we have done a research from IIT Delhi population this, that how does it benefit a state to going from open data? How it helps and how it contributes to your GDP. So this was the research. नहीं बहुत बढ़िया सर मैं तो आपके साथ जुड़ता हूँ क्योंकि मेरा बहुत शौक है ये You tell us what you want us to do. Yeah. So, yeah, I will not take too much time. Thank you, Dr. Mitra, and thank you, UP Govt, for giving us this time. I'll just, in fact, take up this report only that the Chief Secretary was very keen that what we analyzed is that if you open up the systems, not just the data, because data is static, and if you look at today's data, tomorrow it changes. Right, so but if you open up the systems, then you can start increasing and contributing to the GDP itself. And our calculations show that there will be an increase of 5% of the state GDP if you open up the government systems. And I'll go through it as we, as we progress through today's conversation. And coming back to C-DEP, essentially we have enormous amount of experience in the private sector, in the government sector, in research. I myself have got a bunch of patents, papers, both in US, yeah. Combining with the government, the academia, and the private sector, and the defense for that matter, we believe that together we can probably move the needle a bit more than doing it individually. And also, what we have seen for over 20 years now is that all conversations are vendor driven. So vendor आके बोलता है मेरे पास हथौड़ा है तो आप बताइए मैं क्या solve कर सकता हूँ. उसमें वो कहानी ठीक नहीं होता क्योंकि चर्चा ये होता है कि मेरा क्या समस्या है उसके लिए मैं क्या solve करूँ. और जो समस्या है वो उल्टा हो जाता है कि आपके पास क्या solution है तो मैं आपका समस्या बताऊँ. So what we want to focus on is what is the Indian way of looking at it. मैं छोटा सा एग्जांपल देके छोड़ दूँगा. जहाँ पे हमारा शहर की डिजाइन होता है, शहर डिजाइन होने के बाद जब कमारियाँ जाते हैं, दिवाली होता है, कुछ होता है, हम बोलते हैं कि इंडियंस को पता नहीं कि शहर में कैसे रहे, वो सब गंद मचा के चले जाते हैं. समस्या उल्टा है. हमने अपने सिटीज जो है वो वेस्टर्न तरीके से बनाया हुआ है. त्योहार तो हमारे हैं ना, तो जो सिटीज है वो भी हमारे तरह से बनना चाहिए ना, उल्टी तरह से नहीं बनना चाहिए. तो हमने जो था हमने सिटीज को कॉपी किया बाहर से, वेस्टर्न एरिया से. So much that we copy is that when we looking at the metro stations, you will see that we are thinking there is no auto rickshaws around. So it's not designed for auto rickshaw stands. It's not designed for people to come in and move around. We keep thinking in a western way. और उस विचारधारा में हम भूल जाते हैं कि हमारे कौन सी issues हैं. So वहाँ पे हम we as a society want to contribute.
and also take up learnings from Uttar Pradesh, take it to us. So that's the. So with that, request your permission, sir, to start off. Sure. सो जिस ये बात कर रहे हैं ऑफ सिस्टम की, मैंने एज ग्रेटर नोएडा इससे पहले और यहाँ भी में भी फाइट करता रहा, यहाँ भी फाइट कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वेंडर्स कंट्रोल करते हैं, आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं मैकेनिकल स्वीपिंग करता था, तो उस कंपनी का अपना ही ऐप था, उसमें सबको दिया। मैंने कहा उसकी API मेरी वेबसाइट पे वेबसाइट पे आ गई, मैंने पब्लिक डोमेन में डाल दी, सबको देखने लगा कि ये मैकेनिकल स्वीपिंग का ट्रक चल रहा है नहीं चल रहा, और उसका स्वीप का करता सड़क को। मैकेनिकल आप स्वीपिंग समझते हैं, सड़क पे ट्रक चलता है, ब्रश लगे होते हैं, सफाई करता है, तो तब स्वीपिंग कर पाता है इफेक्टिवली यदि 15 किलोमीटर से कम स्पीड है और एक हमारा रूट है उस पर चलना है, तो पहले महीने उसका बिल 40% रहेगा। एक ट्रक का बिल जो है उसका मतलब 10-20 लाख है, तो 4 लाख रहेगा, तो या तो 15 लाख की 15 किलोमीटर की जाए 30 किलोमीटर पर दौड़ा रहा है, कुछ भी करता है। ये सिस्टम को इसलिए समझने की बहुत जरूरत है। मैंने 2 दिन के आज एग्जाम्पल दे, तो मेरे ख्याल से बाद में सब डिपार्टमेंट से सब कर सकते हैं, शुरू करेंगे। This was what we are in brief. So I would like to, good evening everybody. My name is Sharad Venkataraman. I am the Senior Policy Analyst at Center for Digital Economy Policy. I would like to apprise you on the speakers who would be speaking on today's session. The first speaker is Dr. Jayajit Bhattacharya. Dr. Jayajit Bhattacharya is a noted expert in technology-led governance and is the president for Center for Digital Economy Policy, an independent think tank. He is also the founder and CEO of Xeron Microsystems Private Limited, which is a cutting-edge fintech company, which is also awarded by the Startup India. Dr. Jayajit Bhattacharya is also an author of 6 books, including the first book on e-governance in this country that has been released by the then President Dr. Abdul Kalam. His 6th book was released by Shri Narendra Modi. He has authored over 50 peer-reviewed research papers and has had several patents across India and the US. He has held leadership roles in the global MNCs such as Accenture, IBM, HP, and KPMG. He did his BTech from IIT Kanpur, MBA from IIM Calcutta, and PhD in computer science from IIT Delhi. The second speaker today, for today's session is Dr. R.K. Mitra. Dr. R.K. Mitra is a former civil servant who served in the government of India. He was involved in the policy formulation in the areas of special economic zones, Indian visa and immigration, and police training. After his superannuation from the civil service, he joined as a professor at IIT Jodhpur in the area of strategy and public policy. He has also taught at IIT Kharagpur, IIT Delhi, and several IIMs. Dr. Mitra is the principal advisor of Center for Digital Economy Policy, where he brings his wealth of experience in policy formulation and e-governance. Dr. Mitra also has a PhD on e-governance from IIT Delhi.
which was the first of its kind. Thank you. Thank you. So I'll go to the first session, and if you permit me, I'll stand there. It's easy for me to do that. So the first session is leveraging AI for efficient benefit delivery system. And this came up at around 2003-04 when I was working with the Maharashtra government. And I'll tell you the case that happened. There was a tribal woman who was handicapped and pregnant. So what that meant is that she was supposed to get benefits from the government because she was handicapped, because she's a woman, because she's pregnant, because she is from a backward community, and because she's a woman. So none of that is what she was getting. In fact, in the first trimester, when you go for the checkup, every trimester you're given some 150 rupees. In the first trimester, she was given 100 rupees and said, "बाकी आप sign कर दो, बाकी आने की जरूरत नहीं।" तो समस्या ये है कि अगर आप इनकी जो प्रोफाइल है, ये जो ट्राइबल वुमन की जो बात कर रहे हो महाराष्ट्र में, उसको कैसे पता चलेगा कि 40 डिपार्टमेंट में उसको क्या मिलना है? अगर हमें ही नहीं पता चलता, जब जो थोड़े बहुत मतलब सिस्टम जानते हैं, लिखे पढ़े हैं, अगर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें सरकार से क्या मिलेगा, तो जिनको एक्चुअली चाहिए उनको कैसे मिलेगा? So ज्यादातर चीजें जो मैं बताऊंगा वो आपको पहले से ही पता है. We'll just use this opportunity to collect those thoughts and see how we can take things forward. So it's not that a lot of things are new. There will be a few things which are new. ज्यादातर चीजें आपको पता होगा. I'll just repeat what all of us know in that sense. ये आप हिंदी बोलने ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे कुछ लोग मेरे अच्छा है. मैं कोशिश करूंगा, बीच में अटक जाता हूँ तो मैं स्विच कर लूंगा, लेकिन मैं मिक्स कर दूंगा बिल्कुल. तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि जो लाभार्थी है वो 100% हमें कवर करना चाहिए. जो अंत्योदय है, जो अंत में जो खड़ा हुआ है और उसके जेब में पैसा नहीं आ रहा जब उसको चाहिए, तो फिर क्या फायदा है ना? सो ये हमारे प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री भी यही चीज कह रहे हैं कि वास्तव में लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार यही है जब जनता को शासन व प्रशासन से मिलने वाली सुविधा है उसकी आवश्यकता के अनुरूप बिना भेदभाव के उसे प्राप्त हो जाए. इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि बिना भेदभाव के और बिना मांगने के. अब समस्या कहाँ पे आता है? समस्या इस पे आता है कि कुछ लोगों के पास एबिलिटी है कि वो मांग सके. ज्यादातर लोगों के पास एबिलिटी नहीं है. अगर मैं किसी गांव में पढ़ा हूँ, मुझे क्या पता कि मैं कहाँ से मैं फॉर्म डाउनलोड करूंगा, किससे पूछूंगा, कैसे मैं ऑर्डर करूंगा, कैसे मैं सरकार से मांगूंगा कि ये मुझे चाहिए. और हर जो बच्चा, हर जो नागरिक वो पीछे रह जाता है तो वो पीछे रह जाता है, फिर उसके बच्चे भी पीछे रह जाएंगे. जब हम यूपी देख रहे हैं कि यूपी विल बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिट्टी से तो नहीं बनेगा, वो तो ह्यूमन रिसोर्स ही बनेगा. अगर ह्यूमन रिसोर्स वहां पे हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स आगे नहीं आ पाते हैं तो फिर दिक्कत है. एक जगह हम देखते हैं कि यूपी के लोग सबसे आगे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे यूएस में जाके हो, और दूसरी तरफ देखते हैं कि ज्यादातर लोग वो पिछवाड़े हैं. अब वो बैकवर्ड इसलिए हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं मिल रहा है. और उसके लिए हम सबको बताया सरकार ने 300-400 प्लान्स करे हुए हैं, लेकिन वो प्लान्स उनके पास तक पहुंच नहीं रहे. उसमें दो चीजें होता है कि एक तो ये कि जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलता है, और जिनको मिलना चाहिए उनके पास पहुंचता नहीं है. तो दोनों इशू है जो हम कहते हैं एरर ऑफ इंक्लूजन एंड एरर ऑफ एक्सक्लूजन. अब दोनों कैसे सॉल्व करें? इसी में एआई का इस्तेमाल हो सकता है, ओपन सोर्स जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हो सकता है, और इसमें जो चौथा चीज है उसमें ये है कि जब तक ना सारे डिपार्टमेंट्स लगभग जुड़ जाए या कोई एक रोड मैप हो जिसके अनुकूल डिपार्टमेंट जुड़ता जाए एक के बाद एक, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा बच्ची है जिसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है. तो जब सारे डिपार्टमेंट जुड़ जाएंगे, मैं कर्नाटका का एक एग्जांपल लेता हूँ, करीब 8000 बच्चियां ऐसे निकली जिनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए था और उनको मिल नहीं रहा था. और कैसे हमें पता चला? हमें पता चला उनका फ्रूट्स बोल के एक डेटाबेस है, फ्रूट्स इज फार्मर्स समथिंग समथिंग, फार्मर्स डेटाबेस. और उसमें ये था कि जो फार्मर्स की उपजाऊ जमीन नहीं है और उनको बेनिफिट दी जा रही है, उनके बच्चियां स्कॉलरशिप मांग नहीं रहे. ये कैसे हो सकता है? जब उनके पिताजी को चाहिए पैसे, बेटी को तो चाहिए. तो हमने फिर ऐसे 2-3 डेटाबेसेस माइन करके निकाले और 8000 ऐसे बच्चियां रह गए थे जिनको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए था,
हमने सरकार को वो प्रेजेंट किया, सरकार ने इमीडिएटली बजट निकाला और उन्होंने वो डिस्बर्सल कर दिया। अब इशू ये भी आता है कि आप बजट कैसे बनाओगे कि आपको जब पहले से नहीं पता कि कितने लाभार्थी होंगे किसी स्कीम में, तो आप बजट कैसे बनाएंगे। फिर इसमें ये होता है कि बजट कम हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है। सो ये सारी चीजें फिर अगर सिस्टम्स रहे तो हमें वी कैन देन गेस्टिमेट कि कितना बजट होना चाहिए, कितना हम कौन सा कट ऑफ करेंगे। अगर बजट कम है तो जो ज्यादा नीडी है उनको पहले दिया जाएगा। तो वो नीडी स्कोर कैसे करें, किस बेसिस पे, किस आधार पे हम बोलें कि इनको बेनिफिट देना चाहिए और इनको नहीं देना चाहिए। तो सोशल प्रोटेक्शन जैसे हमें सबको मालूम है, टू प्रोवाइड ए मिनिमम लेवल ऑफ हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, इन सब चीजों में आप देखेंगे कि पैसे की बात नहीं हो रहा है। ये नहीं कि हम पैसे देंगे, हमें इसका वी नीड टू मेक श्योर दैट लोगों के पास हेल्थ हो, हाउसिंग हो, एजुकेशन हो और खाना हो। अब वो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एज वी ऑल नो देयर आर 6 लेयर्स ऑफ पोरेस्ट ऑफ द पुअर, 6 पोरेस्ट ऑफ पुअर लेयर्स हैं। उसमें जो बिल्कुल नीचे के लेयर्स हैं उनके पास जैसे ताकि पैसे पहुंच जाए, जो बेनिफिट्स है वो पहुंच जाए। टोटल इंडिया में खर्च होता है 12.5 लाख करोड़ सोशल बेनिफिट में, सारा अगर आप सेंटर स्टेट सारा मिला लें। और इतना खर्च हो रहा है तो अगर आप एक अनुमान लगाएंगे, इसको बैक कैलकुलेट करेंगे, तो जितने भी लोग हैं जो बिल्कुल लाचार हैं उनके पास से पैसा पहुंचना चाहिए था, बट अभी भी पहुंच नहीं रहा है। इन स्पाइट ऑफ डीबीटी, इन स्पाइट ऑफ ऑल एवरीथिंग दैट्स बीन पुट इन, अभी तक पहुंच नहीं रहा। 30% इंडियन पॉपुलेशन डू नॉट गेट एनी सोशल प्रोटेक्शन, एरर ऑफ एक्सक्लूजन। उनको मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा। एंड देयरफॉर व्हाट आल्सो हैपेंस इज, जो मैंने बताया कि सरकार को अपना फाइनेंशियल प्रेशर है और सोशल प्रोटेक्शन बजट के बीच में एक बैलेंस लाना होगा, और दैट हैज टू बी बेस्ड ऑन डेटा। सो क्या क्या प्रश्न होता है जब हम कोई भी स्कीम बनाते हैं और उसको डिलीवर करना चाहते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये कि बेनिफिशियरी कौन है, लाभार्थी कौन है, तो वो डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है। हम कैसे हर लाभार्थी के पास पहुंचे और उनको कैसे बताया जाए कि ये स्कीम उनके पास है, वो दूसरा समस्या हो जाता है। कई जगह ये होता है कि हर स्कूल में जाके प्रचार किया जाए, अब बच्चे कितना समझेंगे, वो भी हो नहीं पाया, दुनिया में हो नहीं पाया। हाउ कैन द बेनिफिशियरी अप्लाई फॉर ईच स्कीम यूजिंग मल्टीपल चैनल्स। सो जिनको डिजिटल लिटरेसी है उनका पहला चीज फोन है, और फोन में भी आधी चीजें अंग्रेजी में होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी अंग्रेजी में होता है, वेबसाइट चाहे हिंदी में हो जाए, तो कैसे वो अप्लाई कर सकते। तो वो तीसरी चीज है। चौथी चीज है, जो बेनिफिट्स डिसबर्स हो वो बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के साथ पॉलिसी के हिसाब से वो दिया जाए, और अगर किसी कारणवश मैनुअल इंटरवेंशन होना चाहिए तो उसका भी प्रोविजन होना चाहिए कि कैसे मैनुअल इंटरवेंशन होगा। How can government ensure the benefits support socio-economic empowerment basis unique situation of each family? अब जैसे एक अगेन रियल केस, अरक्कू वैली आंध्र प्रदेश में एक सीनियर लेडी थी। वो जंगल में रहती है और जंगल में सारे रहते हैं, वो छोटे छोटे झोपड़ी बना के सब रहते हैं। अब जो बाकी जो लोग हैं उनके बच्चे हैं वो जंगल में जाते हैं, कुछ लकड़ी वकड़ी लेके आते हैं, तो उनका घर खाना वाना चलता रहता है। ये जो लेडी थी उसको विडोड थी, उसे कोई बच्चे नहीं थे, एंड सो पैसे किसी के पास नहीं आ रहे, जेब में इनके पास भी नहीं आ रहा, इनके पास भी नहीं आ रहा। लेकिन जो ये लेडी थी जिसके जो विडोड थी और जिसको जंगल में आने के लिए कोई नहीं है, obviously she is poorer than everybody else. She is in fact a destitute compared to this other family. So the problem that we are driving at is that it becomes a family issue. अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो समस्या है नहीं। आप देखें कोई 17-18 साल का है, उसका इनकम लेवल 0 है क्योंकि वो स्कूल में पढ़ रहा है, तो फिर उसको फिर बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन वो तो सही नहीं है। और फिर आप किसी को देखेंगे जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए और वो पहुंच नहीं रहा है। सो जो व्यू होना चाहिए वो फैमिली व्यू होना चाहिए। लेकिन जब आप फैमिली व्यू लेते हैं तो फैमिली का डेफिनेशन हर बार आता रहता है कि कैसे हम फैमिली बनाएं। कभी कोई कहता है कि फैमिली बनना चाहिए कि एक चूल्हा हो, अगर एक चूल्हे से एक किचन से खा रहे हैं तो वो एक फैमिली यूनिट है। अब बहुत जगह वो फैमिली यूनिट का डेफिनेशन बहुत सारे स्कीम्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। सो फिर रन टाइम पे कैसे हम फैमिली यूनिट डिफाइन करें और उसके हिसाब से हम डिफाइन करें कि बेनिफिट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सो अगर इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप मालूम है
और इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, और बेस्ड ऑन कौन सा स्कीम हम वो एप्लीकेबल है, हम फैमिली यूनिट उस वक्त ऑन द फ्लाई बना के डिटरमिन करें कि उनको बेनिफिट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। और ये जो रन टाइम में फैमिली बनना है ये हो चुका है, ये कुछ मतलब कोई नया चीज नहीं है, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल। सो मूविंग फॉरवर्ड जो सबको मालूम है इज पहले हमें एलिजिबिलिटी निकालना पड़ेगा कि कौन कौन एलिजिबल है, फिर उसको वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन कैन बी स्टार्टेड बाय सेल्फ वेरिफिकेशन, कि मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट गेट्स टाइटन्ड अप, बट एटलीस्ट आई स्टार्ट बाय सेइंग मुझे चाहिए। जैसे गैस सिलेंडर इज ए ग्रेट एग्जांपल। हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि जिन जिनको गैस सिलेंडर में सब्सिडी नहीं चाहिए वो खुद ही बता दें, सबने बता दिया। तो हम पहले वो शक के नजरिए से देखते हैं लोगों को, अगर दूसरी तरह से देखें तो एटलीस्ट हमारा डेटा कलेक्शन शुरू हो जाएगा, और देन वी कैन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रायंगुलेट। मुझे यहाँ पे याद है 2003-4 में सीतापुर में हमने पुलिस स्टेशन में सिस्टम लगाया था। तो पुलिस स्टेशन का सिस्टम था, वहां पे कोई जनाब आके बहुत चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि उनका गन लाइसेंस बना नहीं अभी तक। तो हम खड़े हुए थे, फिर हमने पूछा कि क्यों नहीं बन रहे। कहता है जो वहाँ पे पुलिस थे कह रहे हैं कि इनका तो इन्होंने गैस सिलेंडर तो बीपीएल के नाम पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो अगर बीपीएल में गैस सिलेंडर अप्लाई किया हुआ है तो गन लाइसेंस कैसे अप्लाई कर रहे हैं? गन तो 50-60 हजार के नीचे होता नहीं है, वो भी 2003-4 की बात कर रहा हूँ। तो जब आप डेटाबेस ट्रायंगुलेट करेंगे, ये तो वहाँ पे उसको पता था इसलिए कह रहा है, जब डेटाबेस ट्रायंगुलेट करेंगे तो ये जो लीकेज होता रहता है वो फिर निकलेगा, और फिर जो बजट में प्रेशर आएगा that gets reduced. So the verification is important, and post that the needy score. Why is needy score needed? Because budget will always be a constraint. आप सबको तो दे नहीं सकते, तो जब आप कहेंगे कि मेरे पास सिर्फ 100 करोड़ है देने के लिए, तो फिर आप नीडी स्कोर में कट करेंगे और कहेंगे कि इससे ऊपर जिसका नीडी स्कोर है हम उनको देंगे बेनिफिट और बाकियों को नहीं देंगे। And that takes us to the error of exclusion. So deprived people not covered in welfare scheme क्योंकि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एरर ऑफ इंक्लूजन कैसे हो रहा है? सिटीजन को अवेयरनेस गैप नहीं है, एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ये डालिए वो डालिए। एप्लीकेशन प्रोसेस ये होना चाहिए कि मैंने अंगूठा डाल दिया, आप आधार से देख लीजिए और मुझे बता दीजिए मुझे क्या मिलना है। आधार में मेरा सब कुछ दिया हुआ है, मेरा नाम दिया हुआ है, कास्ट दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, जेंडर दिया हुआ है, सब कुछ आधार के साथ बाकी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उसको अभी नजरअंदाज कर लेते हैं, बट उनके बावजूद हम ऑटोमेटिकली लोगों को उनका जो बेनिफिट है वो डिलीवर कर सकते हैं। ये नहीं कि डे 1 पे हम पूरा ठीक रहेंगे, इट बी अ प्रोसेस, इट बी अ रोड मैप। सो थोड़ी जैसे सीखते रहेंगे, डेटाबेस जुड़ता रहेगा, वैसे हमारा एक्टिवेट होता रहेगा। Then there's always also discretionary power misuse, जो लोएस्ट लेवल पे है, पटवारी वगैरह जहाँ पे है, वहाँ पे जो भी सिस्टम पटवारी के थ्रू जा रहा है, जो भी लोअर लेवल्स पे है, वहाँ पे हमें सब पता है क्या होता है, सबको पता है क्या होता है। So that's something that we need to also look into as we move forward. We are not saying that remove sex of people, but what we are saying is हम कैसे जो existing system और जो हमारे existing हालात है उसके बेस में हम थोड़े और सिस्टम्स डाल के उसको कैसे टाइटन अप कर सकते हैं, जो एरर ऑफ एक्सक्लूजन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और एरर ऑफ इंक्लूजन को भी अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो हमारे बजट्स पे फ्री हो जाएंगे। Therefore, what we get is a democratized eligibility to help people, easy anytime anywhere application through the common service centers. CSCs बहुत ही सक्सेसफुली यूपी में रोल आउट हो चुका है, तो क्या हम वो कॉमन सर्विस सेंटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं? Data verification by data owner department of पंचायत, yes or no only. So डिपार्टमेंट तो वेरीफाई करेंगे डेटा, तो उसमें सिर्फ yes no के बेस में कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या होता है कि उस पर लंबा चौड़ा कुछ रिमार्क आ जाता है, कुछ पेपर्स आ जाते हैं, फजी सा रिप्लाई होता है, neither yes nor no, and then deprivation index to eliminate different understanding of preference criteria. So basically have it systems driven, policy driven, और उसके बाद अगर you want to have a manual intervention, वो भी संभव है, लेकिन पहले जो ढांचा है उसको हम ये जैसे 300 एट्रीब्यूट्स लेके कर्नाटका में की गई थी एक सिस्टम, जिसमें 300 एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के जो हमने बताया था कि 8000 बच्चों को निकाला गया कि उनको मिलना चाहिए था स्कॉलरशिप,
और नहीं मिला, तो ये धीरे धीरे बनता रहेगा। तो यहाँ पे सिटीजन डेटा और बेनिफिट डेटा मिला के द सोशल सिस्टम जो है, द सोशल रजिस्ट्री है, वो बन जाता है। यहाँ पे जो सिटीजन डेटा है उस पर रन टाइम में हम निकालते हैं कि फैमिली कौन सा है, कि कौन कौन मिला के एक फैमिली बनता है, उसके हिसाब से जो बेनिफिट्स है वो उनको फिर दिया जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल सिस्टम दैट हैपेंस। उसमें आपको बजट फोरकास्टिंग में चाहिए होगा, बजट प्लानिंग चाहिए होगा, द की थिंग्स, ग्रीवेंसेस, प्रोएक्टिव एनरोलमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ये प्रेजेंटेशन छोड़ के जा रहा हूँ। तो जैसा भी हो, we can support in further thought process based on what UP already has, because उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। अभी हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे ये बनना शुरू कर सकते हैं, जो है उसके आधार पे ये बनना शुरू हो सकता है। So that's the end of the first presentation we had. What the Chief Secretary had told us that we should take more questions than talk from our side. तो आपका अगर कोई प्रश्न है तो हम ले लेते हैं, तो उसको फिर जवाब देंगे। सर एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी कैसे होंगे? सो ऑफ द कफ ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल हार्ड कोई डिफाइंड है, लेकिन जैसे स्टेट्स में हमें मिलता रहता है डेटा, वैसे हम देखते रहते हैं। वैसे आप देखोगे इन दैट सेंस, मतलब हम तो आपके साथ सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे। जैसे हमें कर्नाटका में उनको फ्रूट्स डेटाबेस मिल गया था, फिर उनको ऐसे फ्रूट्स जो फार्मर वाला जो डेटाबेस है, ऐसे अनेक डेटाबेस उनके पास पहले से थे। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास कौन से हैं और कौन से लिंक्ड है, क्योंकि उसमें आधार टू आधार तो आपने लिंक नहीं किया होगा सुप्रीम कोर्ट के कारण। तो डिपेंडिंग आप कैसे लिंक कर सकते हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम फिर एट्रीब्यूट्स निकालेंगे। आप बताइए, आप तो फैमिली आईडी बना रहे हो, तो सारे बेनिफिट आ रहे हैं, आप प्लानिंग से? हाँ सर, दूसरे प्लानिंग से। तो आप लोग तो फैमिली आईडी बना रहे हो, और फैमिली आईडी में लिंक कर रहे हो कि आधार एक्ट का वायलेशन है जो ये कह रहे हैं, ये आपको पता नहीं पता? मेरे ख्याल से यदि आप जो है कि किसके थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं मुझे पता नहीं, और आप पीडीएस को फैमिली आईडी मानते हुए बना रहे हैं, तो देख लेना आधार एक्ट का वायलेशन है। सर ये हैशटैग ऑफ आधार लेके चल रहा है, व्हाट दे आर टेकिंग अप इज द सॉफ्टवेयर कर्नाटका एग्जाम्पल, what we are doing is eligibility verification and reach out community, so they are mapping the family with all the benefits that have department, और उसको एक फैमिली में मैप कर देंगे। तो आपने डाटा एनालिटिक्स को निकाला है कि किसी फैमिली को क्या चाहिए, बेसिकली नहीं बिना आधार के यूज को अच्छा फिर आधार का हैश लगेगा, वो तो अलाउड नहीं है, वो अलाउड है, अलाउड नहीं अलाउड। तो मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ। हम तो एक जो है वो आधार में थे, भारत का सेक्रेटरी बैठी को दो तीन स्टेट्स में दिया, राजस्थान मध्य प्रदेश में जोड़ा है। अब जो है पता नहीं आप कैसे आप आधार हैश लेके अलाउड नहीं है। एक्चुअली सर हमारे यहाँ दूसरी टीम देखी एक एरिया प्लानिंग के दूसरा, मतलब बिकॉज़ जो जजमेंट आप पढ़ लेंगे तो काफी 800-900 पेज का जजमेंट है, बहुत क्लियरली हुआ कि ऐसे वैसे आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्लैरिफिकेशंस भी इशूड हुए थे। मैं तो बीटीजीआईडी था, हमने इसको सर लिंक कैसे करें, इंटीग्रेशन कैसे होगा? सो आप जैसे आपको समाज प्लान है ना, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जैसे सर हम लोग इस तो इनके पास बहुत सारी स्कीमें हैं जो आपके हां या तो मैक्सिमम इनके पास में, हां मैक्सिमम स्कीम है। अब ये जैसे हम लिंक लोग तो यार आप कर रहे हो ना, प्लानिंग तो दे रहे हो, हाँ जी सर, प्लानिंग कर रहा है ना फैमिली एक्ट जो है उसमें आप कर रहे हो। हाँ जी सर, तो कर रहे हैं जो मतलब मैं ऑफिशियली वोट पर गलत कर रहे हो, तो कानून में आपके खिलाफ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए आप देख लीजिए। तो ये आधार का चला गया एक्टिवेशन आपके जनाब ने, आपने मेरा आधार यूज कर दिया, बिना सर किसी तो नाम देगा। ईमेल आईडी के इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए आपको क्या है, ये ज्यादा अच्छा बताएंगे। एक है यूनिक आईडी, कोई अब ऐसी यूनिक आईडी दी है, कोई बॉडी को दी गई या वो हाथ को, इसमें कहा जाता है फर्जी बेच सकते हैं, रेज्यूमे ऐसे फर्जी बन सकते हैं, पासपोर्ट फर्जी बन सकते हैं, और ये आइडेंटिटी फर्जी नहीं बन सकती क्योंकि ये आपके हाथ और आंख को दी गई है। एक आगे जितने लोग कहते हैं इसलिए कर दिया, वो आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी, बाकी सब प्रॉक्सी आइडेंटिटी। अब ये एक यूनिक आईडी हो गया। अब आपने राशन दिया है, तो राशन को आपने इससे लिंक कर लिया, वो अलाउड है। अब राशन की एक आपकी यूनिक आईडी है,
फिर आपने इसको कुछ और दे दिया, सोशल वेलफेयर की बुढ़ापा पेंशन दे दी, इधर राशन दे दिया, इधर बुढ़ापा पेंशन दे दी, वो एक लिंक है। अब ये दोनों कैसे लिंक होंगे? यदि आपको बीपीएल से ऊपर उठाना है, एक परिवार का आज मान लीजिए 10,000 रुपये प्रति परिवार पर मंथ है, 4 लोगों का 40,000 हो गया, साल भर का 5,80,000। आप देखोगे भी मैंने 5,80,000 में सब कुछ जोड़ के कितना दे दिया। अगर आपने 5,30,000 दे दिया, 50,000 रुपये उसको दे दीजिए, बीपीएल से ऊपर हो गया। और इशू ये है कि इनको आपस में कैसे जोड़ा जाए। यदि आप आधार के थ्रू जोड़ते हो, ये कह रहे हैं जजमेंट के थ्रू अलाउ नहीं है, तो फिर भी कोई तरीका ढूंढा जा सकता है कि यूनिक आईडी है, जब आपको पता चल गया ये इसकी यूनिक आईडी है, यूनिक आईडी को किस तरह जोड़ लिया जाए, ये बहुत बड़ा एक इशू है। जैसे अगर आप डीबीटी दे रहे हैं तो उसमें अकाउंट नंबर पता रहेगा, तो बैंक अकाउंट से जोड़ लीजिए, मोबाइल नंबर से जोड़ लीजिए। ऑल्टरनेट ऐसे कर सकते हैं आप। मुझे अगर सारे एट्रीब्यूट भेज देंगे प्रॉब्लम ये रहती है जो ओल्डर पर्सन है, बहुत से गांव के ऐसे गरीब लोग हैं जिनका मोबाइल नंबर नहीं वो एक नहीं, आप पेज यूज करते हैं, जी जी मोबाइल निर्वाचन आईडी कुछ चीज है, वो हल है वही एआई से कह रहे हैं कि उसका हल कर देंगे। एआई का ये एडवांटेज है कि आपके सारे डाटा में डाल दीजिए, आधार छोड़ दिया तो वो कहीं ना कहीं कुछ कर देगा, जो बताया गया आपको एआई वो कर देगा, वो बिना आधार को यूज किए भी कर देगा। तो उसमें भी एरर्स होंगे, ऐसे नहीं कि एरर्स नहीं होगा, बट वो एक मतलब पहले 95% ठीक रहेगा, फिर 98% वो बढ़ता रहेगा। आपका होना बन जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, वैसे तो हमारे यहाँ कोई डिटेल नहीं है इस बारे में कि सारी खतौनी 100% उसको जोड़ दिया है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं कि अभी भी जो है वो जोड़ नहीं पाती, तो उसके लिए कैसे इंटरलेट खतौनी क्या खतौनी मतलब जो होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, हां, तो उसको रिकॉर्ड ऑफ कैसे राइट, हमें रिकॉर्ड ऑफ सो किसके साथ जोड़ना चाहते हैं? मतलब उसको जो है जन सामान्य के साथ जिसका किसी को भी निकलवाना है, हमसे तो डिपार्टमेंट 100% जो है अपना पूरा काम पूरा कर लिया है, लेकिन इसको किसी को अभी कभी कभी जो होता है वो नहीं मिल पा रहा, तो कैसे लिंकिंग? तो हमारे हिसाब से तो ये है कि अगर आप उसको ब्लॉकचेन में डाल दें तो फिर लोगों को आराम से दिख जाएगा, और जो डेटा जो निकालना का जो आप जो जोड़ने का जो आप समस्या बता रहे हैं वो सॉल्व हो जाएगा उसी में, और सिक्योरिटी भी रहेगी। अच्छा, दूसरी तो आई विल कवर दैट, इनफैक्ट आई विल कवर ब्रीफली ब्लॉकचेन इन 5-10 मिनट्स। दूसरी एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो कुछ ऐसे प्रमाण पत्र बनते हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाता है, अब उसमें ये है कि जो पटवारी हैं, मतलब जो आज के कानूनगो होते हैं, और लेखपाल की रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है बिना उसके, जबकि ये तो ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, लेकिन वो तभी जब तक रिपोर्ट नहीं लगाते हैं तब तक वो बढ़ ही नहीं पा रहा है। अब उस सिस्टम पर अभी काम पूरा नहीं हो पा रहा है, इससे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उसका कैसे निवारण? तो वो अलग समस्या है। उसमें जो टिपिकली हम करते हैं कि एक तो जो पेंडिंग है पटवारी के साथ भी कानून के साथ, वो पेंडिंग का अगर हम ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस उसको ट्रैक रखें कि इन पटवारी के साथ 500 केसेस पेंडिंग है और कितने दिन से पेंडिंग है कंपेयर टू एक और पटवारी, कंपेयर टू एक और पटवारी, ये इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन अगर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, सोशल प्रेशर आ जाता है कि ये पटवारी काम कर रहा है, ये पटवारी नहीं कर रहा है। उसके बाद और तरीके हैं, सब कुछ सिस्टम्स पे नहीं होता है, तो अगेन उसमें भी अगर आप ब्लॉकचेन रखते हैं तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जिसका भी काम अटका रहता है वो देख पाएगा, और जो जिसको गलत तरीके से मिल रहा है, मैंने पटवारियों से के साथ बात करके कुछ गलत सर्टिफिकेट निकलवा लिया, कुछ भी कर लिया है, वो फिर सबको दिखता है। जब वो सबको दिखता है तो वो बहुत बड़ा पावरफुल चीज़ हो जाता है, तो कोई ना कोई तो आके कंप्लेन करेगा कि ये सारा गलत हो रहा है। तो system is so transparent. essentially transparency in क्या होता है ना कि जब हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम पहले जमाने में बनाते थे, उसमें मैं ही सिस्टम बना रहा हूँ, मैं ही सबको बता रहा हूँ, तो उसमें वन कुछ गलत करें तो मैं लिखूंगा ना सब ठीक है। जब हम ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हैं कि सब मिलके वो बना रहे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो आम आदमी है, मेन हमारा इशू ये होना है कि आम आदमी को तो कोई चीज नहीं मिल पा रही है, जो जिस स्तर पर दिखता है उसको आम आदमी इतना प्रयास करता है, इसके बावजूद भी वो बन नहीं पा रहा। तो कैसे जो सर्टिफिकेट बनते हैं तहसील से, उसमें
आसानी से नहीं बन पाते जब तक वो नीचे का कर्मचारी रिपोर्ट नहीं लगाएगा, ऑफलाइन रिपोर्ट So- नहीं लगाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं कुछ जो सर्टिफिकेट मैं पहले देख चुका हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट वो हर साल नया बनता है। मेरा और लेट्स से मेरी बीवी का कास्ट एक ही है, मेरे ख्याल से बच्चे का कास्ट भी सेम, तो जब उसका बर्थ सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं आता। तो कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो सर्टिफिकेट्स हैं, एक जो परमानेंट सर्टिफिकेट्स है उसको अगर हम परमानेंट रखें, परमानेंटली उसको जनरेट करें। तो हम रन टाइम में जो बता रहे थे कि जनरेट होगा, जो जिस प्रकार का मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, अगर इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए तो इंफॉर्मेशन तो सरकार के पास ही होगा। तो अगर मैं वहाँ पे रन टाइम में निकाल सकता हूँ कि रन टाइम में मतलब जो जैसे मैंने मांगा तो वैसे ही निकल आया, और जहाँ पे मुझे जमा करना है वहीं पे मैं बता देता हूँ कि ये मेरा नंबर है, आप खुद सिस्टम में डालो, क्योंकि अगर मैं उसको प्रिंट आउट निकालूँ उसके बाद मैं तो उसका जाली कर सकता हूँ। तो जो कागज है उसका तो कोई महत्व है नहीं, कि जहाँ पे भी कागज निकलेगा मैं तो उसके ऊपर थप्पा लगा के सब लगा के मैं नया कागज बना सकता हूँ। तो अगर ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट्स रहते हैं और ये मतलब ऐसे हाथ हिला के सबका वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट वाइज हम देखें तो एक एक करके हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया वो तो बदलते नहीं हैं, फिर भी हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से हम उसको हर साल बताते हैं कि आप उसको इशू करिए। बच्चे का फिर से हम कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट इशू कीजिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब वील बी हैप्पी टू सिट विद यू एंड सी कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, एक एक करके हम उसको देख सकते हैं। कुछ चीजें में अटक जाएंगे, कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगे। Did that answer your question? He's referring to this कि आप zero manual intervention कैसे करें? जो मैंने बताया, वो तो that builds up. That builds up. That is possible. It is possible, but it is ML. it is ML. Over and over करते. And the second thing is it has to pull in data from other departments also. So that will be a roadmap. So it will take 2 to 3 years before we reach that. If we start today, then we reach in 2 to 3 years. Coming back to the family ID, अगर आप अगर family ID की टीम से आपका इंटरेक्शन कराएंगे, तो थोड़ा सा different project है. It is not using Aadhaar. Yes. आधार के So the आधार पे challenge- जो हमारा वो बना हुआ है राशन कार्ड, उससे वन टाइम हमने केवल क्रिएट कर लेते हैं फैमिली, एंड देन उसका हैशटैग है, वो हैशटैग कहीं बिकॉज़ यू आर नॉट यूजिंग आधार एनीमोर, एंड हैशटैग इज जनरेटेड डाटा बोर्ड से हैशटैग ही खींचता है। आधार की तो मीडिया पे जाते हैं डेटा बोर्ड हमारे उसके पास अगर इसका के पास होता है, तो वो हैशटैग कहीं भी यूज होगा, किसी भी स्कीम के लिए समाज कल्याण में मिशन दे दिया, वो हैशटैग यूज हुआ तुरंत आगे हमारे फैमिली आईडी में मैप हो गया। So basically it is mapping, just mapping. We're not using Aadhaar for anything else, but just So I mean that I can't comment. So let because that we be. have taken UIDAI also on board. As long as everything is fine, So because we have taken the gray area. Basically. I have fundamentally a different opinion altogether. We struggled for over 20-25 years to come to Aadhaar for the purpose that we should be benefiting the citizens of the country. अगर वही नहीं हो रहा तो क्या फायदा? So going the breach हो गया, who is responsible? That is the point. That no, I understand both the issues. Going the breach हो गया, मेरा भी डाटा पड़ा हुआ है ट्रांसफर में, आपका पड़ा हुआ डाटा होगा। नहीं, but coming back to family, the issue is this: is that family is not a stable structure. अगर बच्चा 18 साल से ऊपर हो गया या 24 के ऊपर जो भी या किसी की शादी हो गई, कोई शादी के बाद भी रहता है, कोई शादी के बाद नहीं रहता है। ये तो यार उल्टा जाके वहां से लड़की वहां पे रहता है। हाँ, जिनमें that is there in the feature, that is there in the portal also. कि इस फैमिली का ये लड़का, इस फैमिली की ये लड़की शादी हो गई, अभी एक नई यूनिट बन गई, ऑटोमेटिकली एक फैमिली ऐड कर देते हैं। सो मतलब डिटेल में देखना होगा, बट एज लॉन्ग एज बन जाता है, क्योंकि समस्या आपको ही मालूम है। और सचिव साहब ने इसको बनाया है, मिस्टर अनूप कुमार साहब ने, तो मतलब taken care of all those issues. I'm not in a very good position to explain the nitty-gritties, Right. but the laws are taken. और किसी के कोई क्वेश्चन? देखिए, इसमें चीफ साहब का बहुत क्लियर होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमको अपने विभागों के बनाने और सर्टिफिकेट हो सकता है कि चीफ साहब नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, उनको एक रिपोर्ट जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्या काम होता है इसको? नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, बट आप बताइए प्रश्न आपको। आपसे इसके बारे में और कोई प्रश्न है?
अगर आप चाहते हैं बाद में भी आप भेज सकते हैं, ऐसे ही कोई वो नहीं है। ये लोग जैसे हम लोग अभी इस तो आपने स्कॉलरशिप की या बताया। पेंशन की जो स्कीम है वो हम लोग वेब सर्विस के माध्यम सर्विस से ले रहे हैं सर्टिफिकेट का नंबर, और सर्टिफिकेट सारे ऑनलाइन है, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो या इनकम सर्टिफिकेट। तो वो तो ठीक है, वो तो बढ़िया है, सही चीज़ है बिल्कुल, और लोगों तक पहुंच रहा है तो अच्छी बात है। और समस्या क्या है उसमें? समस्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है जिसमें कि लास्ट में बड़ा डेटा रहता है, जैसे पेंशन में हमारे ओल्ड एज पेंशन में 55 लाख के ऊपर, और इसी तरह से स्कॉलरशिप में जो सारे विभागों का मिला करके ये भी करीब 35-40 लाख हो जाता है, पेंशन के करीब 1 करोड़ के लगभग। उसमें कुछ डेटा जो रहते हैं कि एक तो आधार की वजह से कि आधार मिसमैच काफी उसमें होता है, क्योंकि जरा भी एक स्पेलिंग का अंतर है तो आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा वो। तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं, आपके जो डेवलपर हैं जी। उनके साथ बैठ के हम उसको ठीक करवा सकते हैं। उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि आप कैसे नाम को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि 90% अगर मैच हो जाए और उसके एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं तो उसके बेस पे अगर 90% या आप डिसाइड कीजिए 95% मैच हो जाता है तो आप उसको अलाउ कर दीजिए। कराया है हम लोगों ने। क्योंकि ऐसे मेरा नाम है भट्टाचार्य में, कहीं पे सिंगल बॉय आता है, इनमें कहीं पे डबल बॉय आता है, तो कभी तो मुझे पहले के ज़माने में फ्लाइट में ही चढ़ने देते थे कि एक में सिंगल बॉय एक में डबल बॉय है। तो अभी वो सारा सॉल्व हो गया, मैं डिजी लॉक जो डिजी यात्रा है उसमें आराम से घुस सकता हूँ, तो इसमें भी सेम करना होगा। These are very rudimentary problems, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ना, भेज दीजिए, मैं आपको जो आपके डेवलपर्स हैं मैं उनको एल्गोरिथम वगैरह शेयर कर दूंगा, वो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद आपका पॉलिसी डिसीजन है कि कितना आप मैच रखना चाहते हैं, कितना नहीं रखना चाहते हैं। आप बता दीजिए कि 95% के ऊपर अलाउड है, अगर 95% मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी आप मैनुअली देख लेंगे। क्योंकि इशू ये भी आता है ना कि कोई राकेश कुमार अग्रवाल है, कहीं पे लिखेगा राकेश के अग्रवाल, तो फिर वो 90% से नीचे आ जाता है, तो उसके फिर ह्यूरिस्टिक्स होते हैं। अब जो यूपी के नाम है वो तो हमें सबको मालूम है क्या क्या नाम है, उतने ही है, मतलब ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट नाम है, तो उनके जितने भी ह्यूरिस्टिक्स हैं वो हम बनवा के दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और जो समस्या आपके पास हो रहा है, आपके पास आ रहा है, वो सारे समस्या सबके पास आता है, तो एक बार आपने वो बना लिया देन दैट कैन बी गिवन एज अ वेब सर्विस, तो आपने वो आप बना के फिर आप सबको दे सकते हैं, not just government को, outside of government. In fact, that's something else that the chief secretary was very keen in. जो हमने open system बना दिया है, तो फिर आप उसको open कर दीजिए और उसको पर API आप चार्ज कर सकते हैं उसका, क्योंकि आपने अपना एफर्ट से बनाया हुआ है, आप एज इन द गवर्नमेंट, आप फिर पर API उसको चार्ज कीजिए, वो सबके लिए अच्छा, और उसको ओपन सोर्स कर दीजिए। उसके ऊपर ओपन सोर्स में ये फायदा होगा कि अगर किसी को लगता है कि उसमें कोई नुक्स है तो अपना कोड लिख के उसको ठीक कर सकता है। तो आप मुझे मेल भेज दीजिए, मैं आई विल शेयर माय कॉन्टैक्ट विद एवरीबॉडी, वी विल असाइन समबडी एंड टेक केयर। So, Dr. Mitra, over to you. Yeah, thank you. You belong? Anybody of you can contact us actually. As I told you, that we have not come here to ask for anything. Absolutely clear. We have come because we are very passionate about technology and how it is used for common people. In fact, this particular thing I'm going to talk to you, I'm not very proficient in Hindi, so you have to excuse me. That after all, technology for whom? Is it for the big business only, for business solution? Or it should be also for the governance and the common people? After all, one day or another, all of us will be common people, common man, irrespective of our position. So how the technology can help the common people, that has been one of our points of interest in C-DEP, right? We follow how the technology and its governance can bring to the grassroots level for the common people use that we just talked about. So this is a presentation. This is a small background. डॉक्टर मित्रा, विद परमिशन, अगर किसी को अनुवाद चाहिए तो मुझे बता देना,
हिंदी में अनुवाद से किसी भी चीज तक हमारा ईमेल है, आप लोग फ्रीली, आई रिक्वेस्ट beneath that please allow them to contact us. We are not commercial at all. We can help. We'll share We'll the be very meeting happy. minutes उसमें आपकी mail ID और mobile number. You can write to us in time. We'll come forward to help you. Right. Now, technological structure, there are two concepts are gaining momentum. I will be speaking slowly. One is asset monetization. What is asset monetization? मान लीजिए prominent, dominant thinking क्या है? One asset, one stream of income. मेरा पास एक asset है, whatever I earn from that asset. But that asset which I have can also bring me another stream of income we cannot think it. For various reasons, regulatory reasons, non-knowledge of the area. So this is, we picked up an issue for taking a very, very bottom of the pyramid section of the people called three-wheeler auto rickshaw drivers. Because they have only one asset, that is their auto, nothing else. Nothing else. And sometimes they own it and sometimes they don't own it. They have rentals. Now, we went to see that how they're using this single asset in the operation. We undertook a research of our own as a social initiative, social research, right? Not as a purely technological research. So what we found very interesting, have a look. Particularly after the introductions or debut of Ola and Uber, how this community has been affected. Income per ride for a passenger faring by an auto has no doubt increased from 95 rupees in 2015 to 118 now. But look at this, per rides per day declined from 14 to 6. So in terms of individual income, absolute income, it has must register an incremental increase. But in terms of their welfare or overall income, look at the impact. That is, from 14 rides, they used to have revenue rider. Rights of two types, one revenue earning rights or non-revenue earning rights. खाली गाड़ी लेके जा रहे हैं पेट्रोल पंप भरने के लिए बैठा हुआ है. That is also right, but this is a non-revenue right, which does not act with income. So we found that this revenue adding rights have fallen from 14 to 6 per day. Now imagine the severity of the impact on his economic well-being. Number one. Now, income per day declined from 1,013 in 2015 to 579. And let me tell you, it is right now is 480. So that is because of this Ola and Uber aggregation models, right? So this is how it impacted. So it increased our interest. What could be the reason? How we can help them? What is the reason? Then we went for a thorough research along with another institute, our kind of a World Resource Institute, WRI. Then we started finding that which time is the peak time, when time is the most revenue earning time. So this is the graph we found. The peak time is morning 8 a.m. to noon, the 35%. But if you look into the revenue earning time, we find roughly approximate 12 hours. Of these 12 hours, 6 hours were idle hours, non-revenue time for them. So out of 12 hours, an auto driver is sitting idle for 6 hours, either riding his auto empty or he is going to the fuel pump or maintenance. This is the scenario. This is the based on the facts of research, not our perception. Hardcore research. Right. Now then we started that what could be the alternative way to help them? What could be the alternative use of their single asset? Then we look into the cargo side, because cargo is a separate, passenger carrying is chauffeur is separate as per the licensing. So we found on the goods carrying sector, below 20 kgs carrying the goods, two-wheelers are taken care of. There is no shortage. More than 200 kgs, the big trucks, cargo carrying trucks are taken care of. But 50 to 200 kgs of cargoes, which are mostly used by the small and medium enterprises. They are not very big. For example, one small hand tool industry factory in Narayana want to send 3 packets of hand tools to his vendor. How does he do? Should we hire a big one, 200 kgs, and suffer an economic loss?
or should he engage a two-wheeler, a lay job, so dangling two-wheeler? So there is a visible gap on the goods platform of this, the option of spending more money and hiring a bigger truck where half of the trucks will be empty, or hire a wheeler violating the laws, fall down, he may jeopardize his instrument. So therefore, this is the scenario found on the field level. So on the one hand is personal loss of income, on the other hand we found a business gap. We try to match it. Now left-hand side I have given a depiction of informal passenger model. Sorry, it is not goods model. That I need auto, so I raise the hand, auto driver comes and say to me. But what happens if I consolidate it? I create a platform and I make interoperability, both the goods within the permissible limits and the passenger ferry. That when you have idle time, you can use the goods carrying. When goods carrying idle time, you can do the work. What happens to it? Now, platform economy, all of you know, is a very reality nowadays. What is the platform economy? The platform economy is something where a leader, technical leader, create an architecture and invite everybody to participate, and they have certain governing principle of sharing values and access control. Let's take the case of food industry. When you are ordering from Swiggy and others, they don't have any restaurant. They have invited the participants to participate in the system. So it is both way. So this is for platform economy. Ola, Uber is also a platform economy. So the platform economy, which was hitherto, was confined to a very bottom businesses, which is affecting the lives of the common people called gig workers. I don't have the data item, I did have. You will be astonished to see the expansion of the gig economy in India, thanks to this kind of platform economy. So this is one. Now the second issue is, if we make it interoperable, what happens? Let's see. First, they get an increased higher income, idle times comes down. For the people who, small business who wants to send the cargo, their logistic cost comes down. Pollution and congestion leading to more sustainable urban planning is possible because you don't find this carbon emitting cargo vehicles, right? So this is possible. Then increased net earnings from bottom of the pyramid. They are really very vulnerable people of the society, and mostly, which is our point of view, greater asset utilization. So therefore, he has only a single asset. It can be put into the multiple streams of income. It is possible instead of keeping it idle. After all, an asset, an economic and productive asset. Why should you allow an asset to go waste? Why don't you allow an asset to contribute to the economic well-being? Why not? Why you should keep this asset idle? So this is the logic, right? So therefore, 40 to 50% cost reductions in the logistic, improve access to the last mile logistic across India. What happens to the logistic in the last mile? For example, in the urban, semi-urban areas, there are certain small and medium enterprises of the grocery. They face enormous problem in carrying the small cargo when they want. So this will also fit. But now we come to the technical side. What about the safety concerns? If you allow the cargo to carry an auto rickshaw to carry cargo, what are the safety concerns? Let's have a look. So there we go into the IIT, which is both of us alma mater. So here we joined hand with Professor Anuj Chawla. He's a renowned expert on the mechanical departments on the transport area. He is a Bharwal chair of Professor Rai. So we told him, why don't you carry a research and tell me that the so-called conception or idea perception that an auto rickshaw is inherently unstable, and if you allow the goods to carry, it will be more unstable. Why don't you find out and testify that whether it's true or not true? So he went to this. Then he found that as on date, that in any case, 67%, I'm talking about this data of Delhi based on this research, of the auto drivers are using some form of other of cargo illegally or by paying bribe. They're doing it in any case, right? But
The people who are sending the cargo are also talking about the need for a higher safety norms for the goods. So therefore, he suggested that if the goods are weight less than 225 kilo, which is matches the weight of the human, if the volumetric norms, that is, it is not coming outside the confines of the auto, and third, the center of gravity, which is maintained, it is perfectly safe for them to carry the cargo as well. Right. Now the question comes, all of you know, the people who are from the transport will tell me that these fellows are amenable to violate the rules, the overload. Overloading is a big issue of our transportation side. So now here the problem is, given the small vehicle category, impacts due to the cargo loading on the road infrastructure will be much less than a heavy vehicle. You will agree with me. Then increasing awareness between of the SME people who are sending and the driver communities, because it is a source of income, they will be more trusted. They will be very careful about this because they know that if I do something, then my source of income will go. And number two, lots of auto bodies that we spoke about, 5 to 6 auto association in Delhi in search of this research. We consulted them. So they said that they exert a number of peer pressure on them not to violate any law. Forget about the good standing that they do it. So that is also there. And very easy to identify visually by seeing that whether you carry below the weight, above the weight, or above the norms, or without an harness. It's not easy. It's not difficult for a traffic inspector to catch them if they violate. Right? So therefore, these concerns we found are more perceptive. Nobody has really questioned them because it is an age-old is coming out. So therefore, this is fine. So therefore, the experts converge into this opinion that for loading capacity, if it is confined to 250 to 300 kg, it's perfectly safe. Similarly, the dimension of the good of the dual utilization should be in the range of 3 feet length and 4 feet width and 2 feet height. It's perfectly safe. And average operation speed should be 40 to 45 kilometers. And by definition, while permitting him to carry the cargo, small cargo, we will say that you will not be permitted to carry construction materials with temperature, humidity, or products like glues, acids, chemicals. That is, you will not be permitted. We can easily conditions while allowing him to carry cargo. The point that it is not unfeasible. I have an asset. It is perfectly feasible to use for an alternative use. But why I should not be allowed to use it? Why not? Is it that only is increasing my earning? It's true, but in the process, I'm contributing to economic well-being. I'm helping in-city logistic transportation at a much cheaper rate. Enhanced income, logistic management become easier. Tax collection of the government, because through the dual licensing, we'll be collecting the license fee also. Also, income goes up. Low cost of doing business for the SME units and small operators, business people. Enhanced asset utilization, and third, strengthening the last mile delivery, particularly those, sometimes the crisis creeps in, the goods delivery becomes delayed. So they can be put into use in a big manner to avoid any crisis, particularly in the semi-urban or little distance area. Take the case of a disaster taking place. Your normal routes are not there. Then who will come forward to help them? These people can greatly help. And finally, the employment generation. If you allow them, then there are more people. As it is, these people who are having auto drivers and other assets are very lowly educated persons. So this may increase the employment. So therefore, the norms suggested by the IIT I have already discussed: weight, volume, center of gravity, and restriction on the nature of force. Now comes to the regulation side. You may say, oh, rules will not permit. I have handled the rules in my union home ministry as a joint secretary, legislation. In fact, I handled all the acts that you people, state government used to send also for giving the presidential assent. So I'm quite familiar with the rules and regulation, including this one. If you look at the section 2B of the Motor Vehicles Act, central government has the power to exempt a specific category of vehicles from the applicability of the provisions of the law for the purpose of innovation, research and development.
Similarly, 673 of the Motor Vehicle Act also empowered the state government to develop a special scheme or issue licenses for promotion of development and efficiency in transportation, improving urban transport and vehiculization. Because, as you know, it is in a concurrent list. Motor Vehicles Act also in central legislation, like IPC, the state government can make their own amendment. It is permissible, right, without mutilating the basics of the central legislation. So therefore, rule provisions already there too. So the question comes where that for the sake of a better asset utilization, for the welfare of these vulnerable people, for increasing the city logistics, port transportation, passenger as well as cargo, why we should not revisit this age-old licensing regime and think out of the box and give a trial to see how it works. As it is, roads and everywhere are congested. But is there any empirical evidence to prove that this will add the congestions more? I don't think there is. Had it been, we would have been able to get into it. So this is a simple presentation I wanted to make. We have a nexus with the business and the people's welfare. So if you have any questions, I'll be very happy to answer. Very nice. And Transport Department, if you like to react, I hope you will not raise the red flag at the first outset. Right? Yeah, sure. Now I wanted him to ask that you please raise a green flag for the time being. तो समस्या बड़ा सिंपल है कि जैसे मैंने पहले बताया कि हम हमेशा वेस्ट की तरफ हमारे यहाँ पे ई-कॉमर्स बढ़ता है। क्या आपके घर पे कभी ऑटो रिक्शा से आके किसने कोई ई-कॉमर्स पैकेज डिलीवर किया है? नहीं किया। अगर हम वेस्ट में देखें, वो उनके पास जितने भी सामान थे वो सबको इस्तेमाल कर रहे हैं डिलीवरी के लिए। हम यूज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो यूज नहीं कर रहे। अब अमेज़न तो अमेरिका में बना था, तो वो उनका जो सिस्टम है वो यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। तो जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो खाली बैठे हुए हैं, तो धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन जो काम कर रहा है, जो डिलीवरी कर रहा है, ऑप्टिमाइजेशन जो लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब एक तरह तो उनका इनकम प्रेशर आ रहा है, बुरा हाल है ऑटो रिक्शा वाले का। किससे बात कर लीजिए, जब आप अगली बार चढ़ेंगे आप बात कर लीजिए, सब लोग हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो, सब लोग हैं। अब यहाँ पे मौका है कि उनको थोड़ा इनकम बढ़ाने का कोई सुझाव दिया जाए, कोई इनेबलमेंट मिल जाए। अब उसमें जो मुख्य इशू है वो है कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसमें उनको सिर्फ पैसेंजर लेने में अप्रूवल है। सो द बिग पिक्चर इज कि हम उनको किसी तरह उनका इनकम बढ़ा सकते हैं, बाकी हमारे पूरा पैसे ये तो हमारा सेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीगलिटी। पूरी दुनिया में जुगाड़ वर्ल्ड फेमस है, हमारे यहाँ जुगाड़ चलता है। वेस्टर्न यूरोप में देखेंगे तो ठेले पे आगे बाइक लगा दिया है, हमारे यहाँ भी स्कूटर लगा दिया है, जुगाड़ चलता है। इट इज वर्किंग। इट इज जस्ट गिविंग ए क्रेडेंशियल और लीगलिटी टू अ सिस्टम व्हिच इज ऑलरेडी देयर। व्हाट इज इट गोइंग टू इंक्रीज दैट? So actually, I'm just saying is I want to put my thoughts again. sure. वो सिस्टम ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। अब उसकी इनकम में बढ़ोतरी कैसे होगी? Because that is already there. Now we are just trying to make it more legal and more simplified. So I think everybody understood the question. कि अभी तो चल ही रहा है, तो हम क्या करें? So उसमें ये है कि जो चल रहा है उसमें आप फिर भी देखेंगे कि घर पे आपको ऑटो रिक्शा आता नहीं है डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि जो बड़े कंपनीज हैं वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं जो एक समान, वो इनको छुएंगे। Blinkit is all on motorbikes. Big Basket is all on small bikes. Zomato also on bikes. Zomato is all on small bikes. हमारे घर पे जो 2 बोरी सीमेंट 4 बोरी बालू आती है कंस्ट्रक्शन का जो जैसा कि समझने का all on छोटा हाथी और something like that. So what I'm saying is they are already existing. One thing I really appreciate, because no one would have ever thought of it in India, about the dual license. That's But really what is the issue? Is the second thing Dr. Mitra mentioned was about the aggregation platform. platform and aggregation. अगर मैं स्टार्टअप हूँ, मैं तो ऐसे प्लेटफॉर्म बनाऊंगा नहीं जो इलीगल एक्टिविटीज को कर नहीं सकता। सो अगर यूपी में स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करेंगे
और उनको बताया जाए कि आप जाके इनको एप्लीकेट, क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन भी हो रहा है उसमें वो जो बालू और सीमेंट का दुकान है उसके सामने खड़े होके मुझे कहते हैं इसको चढ़ा दो पहुंच जाए। लेकिन अगर मुझे कुछ सामान बेचना है, ये जो रिपोर्ट्स है तो मैं ऑपरेट शॉट डाल के मैं ला सकता हूँ, मैं भी कैसे करूँगा? अगर मेरे पास ऐप होता मैं वो कर सकता। और ओला उबर ऑलरेडी है, और भी है जो ट्रक्स को एग्रीगेट करते हैं, छोटे ट्रक्स को एग्रीगेट करते हैं। अगर हम उनको डुअल लाइसेंसिंग वाले ऑपरेटर्स पकड़ा दें, so dual licensing will be a game changer. Because at the end of the day, it is our national asset. All of these are national That assets. is exactly what I was going to pitch in with the transport department. हमारे रिपोर्ट में भी होगा यही था कि dual licensing के बारे में सोचा जाए। जी। आपने कौन देखता हो राम सिंह? नहीं राम सिंह नहीं देखते हैं, वो सीबी सिंह है, सीबी सिंह सर। राम सिंह किसी है। हाँ, और अगर नहीं तो वहाँ नीचे में एक एक्सपर्ट है सुन किया बी के सुन ये पॉइंट वाकई है सर। और आपका कोई क्वेश्चन भी बेसिकली आप तो the other thing is कि अगर हम लखनऊ से शुरू करते हैं, जो लखनऊ का स्टार्टअप है जो करेगा इसको, वो फिर पूरे देश में कर सकता है, क्योंकि हर जगह समस्या एक ही है, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा तो बाकी होगा। इसका मेरा ये अनुरोध है, इसका अलग से हमारे जो डिपार्टमेंट अधिकारी वो हम साथ में बैठ के डिपार्टमेंट का ही सही एक अलग हम चाहते हैं अपने साथ में। 100% आप सही हम आ जाओ। आप कब तक हैं सर यहाँ पर? हम तो कल चले जाएंगे। कल कब निकलना? कल सुबह हमारे 11 बजे। नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन करा दीजिए। ऑनलाइन करा दीजिए और काम में आ जाऊंगा। एक साथ आपको सुपर दीजिएगा तब सबको बुला लेंगे थोड़ा टाइम दे करके। बिल्कुल बिल्कुल। आप बुला लीजिए, हम लोग आ जाएंगे। ये अच्छा है और हम लोग थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और मतलब इसमें अगर आईटी के प्रोफेसर वगैरह को भी बनाना चाहते हैं, वो भी नहीं पहले फर्स्ट फेज में आप लोग साफ कर लें, अगर जरूरी हुआ तो फिर हम और सबको जो जरूरत है वो आपस में ऐसी लिंकिंग करती है, कोई भी चीज है उसको एक विश्वास रहता है और तुरंत वो डिलीवर कर देते हैं और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो सिमिलर्स हैं उनके साथ साथ अभी भी अविश्वास की चीज है। मान लीजिए कोई भी चीज है तो कोई भी चीज डिलीवर करना है या उनसे लेना है तो कोई भी विश्वास नहीं पाया। ये तो होना चाहिए कि तो कानून के साथ साथ विश्वास जरूरी है। तो कैसे उसको बिल्कुल आपने बिल्कुल मतलब जो मेन चीज पे उस पर आपने हाथ दिया। तो जो विश्वास आता है वो प्लेटफॉर्म से आता है कि कोई थर्ड पार्टी आता है बड़ा सा, जैसे अमेज़न या कोई आके बोलता है मैं विश्वास दूंगा, अगर कोई इशू आएगा तो मैं आपको चीजें वापस कर दूंगा या जो भी रिमूव करूंगा, और पूरा विश्वास उस पर भी नहीं होता, लेकिन फील्ड से ज्यादा विश्वास होता है। सरदर्दी कम, तो हमारा जो व्हाट वी डिस्कस वो बनने का हमें शुड बी एबल टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म तब तक नहीं बनेगा जब तक हम वो लाइसेंसिंग, बिकॉज़ उसमें क्यों नहीं होएगा, आप भी शायद एक टेक्नोलॉजिस्ट है, आप भी आर्किटेक्चर बनाते हैं और participating members are not joining. Well, after architecture is of no use. So when you build it, the people will come. There's a Ola over the shuru huई थी और this was also the same transition phase, but today everybody is joining. So that as you rightly said, that platform will take care of the issues of the strength and reliability. जो में है क्या इमेजेस वगैरह जो भी उनके हैं प्लेटफॉर्म है, उनके साथ उनकी एक लायबिलिटी है। जो भी उसको डिलीवर करते हैं उनकी एक लायबिलिटी है कि अगर डिलीवर नहीं किए और समय से डिलीवर नहीं किए और वापस नहीं किए तो उनको पुलिस करने के उनके पास है अधिकार, तो वो पुलिस कर देते हैं। लेकिन अब हम अगर प्लेटफॉर्म बनाते हैं किसी को आप इंगेज करते हैं और उसको जो है जो राइट नहीं होगा कि उनके साथ कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो शायद ये नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं हो पाएगा? जब अगर प्लेटफॉर्म का जो आदमी आर्किटेक्चर है जिसने प्लेटफॉर्म बनाया है, he will not admit him unless he agrees to it. He will impose, he will be exterminated from this platform. तो आपका जो assumption बहुत गलत है। What is saying is आपने प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर दिया, आपने फिनटेक सजेस्ट कर दिया, फिनटेक से फिनटेक जो भी एग्रीटेक हो गया, एग्रीगेटर है। What is saying कि क्या उसको कोई लीगल वैलिडिटी भी तो मिलनी चाहिए। so the position is very right. मंडी में बिचौलिया होता है।
नहीं तो मैंने साहब सिक्योरिटी बना दो तो मंडी के चले हम गाली देते। सो देखिए जो इश्यू है वो तो हमने पहले ही बताया कि आपने बिल्कुल जो मेन इश्यू है उसका अपने हाथ में। उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप और हम या कोई डिपार्टमेंट उसको फिर देखिए जितने आप रेगुलेशन बनाएंगे उतने रेगुलेशन के अंदर लोग दबते रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन आएंगे वो आप जो आपका ई कॉमर्स डिलीवरी करता है वो देखे या ना देखे, है ना। सो अगर लेट्स से अमेज़न, ये सबको अमेज़न पता है, फ्लिपकार्ट पता है, कि अगर इनको लगता है कि इनको यूज कर सकते हैं तो यूज करें। और फिर जो लाइबिलिटी जो आप बता रहे हैं, जो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, जो फिर अमेज़न की लाइबिलिटी होगी या फ्लिपकार्ट की लाइबिलिटी होगी या मिंत्रा की लाइबिलिटी होगी, जो जितने भी ये यहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं उनकी लाइबिलिटी। अब जो दूसरी चीज हो रही है, अब ओएनडीसी आपने सुना होगा, which is open e-commerce platform. Then all of these operations ये ONDC के साथ जुड़ जाएंगे, बहुत सरकार का सिस्टम है। तो आपको एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की भी जरूरत नहीं है। और जो भी जितने भी दुकान उसके थ्रू ऑर्डर करेंगे, सप्लाई करेंगे, उनका फिर सर्वर भी है। अगर 56 को ONDC के साथ लिंक अप करता है और आपने मिठाई ऑर्डर किया, उसने ऑपरेशन पे डाल दिया, आपके ऊपर 40 रुपए ना लगा के वो फिर 12 रुपए लगा रहे हैं, 15 रुपए लगा रहे हैं, ऑपरेशन का खर्चा कम, उसको फायदा होगा, आपको फायदा होगा, और जो सरकार को ओएनडीसी सिस्टम है उसको ऊपर हो सकता है। तो जस्ट अ नेबलिंग फीचर। अब जो मार्केट है उसको कैसे इस्तेमाल करें वो नहीं पता, तो अपने हजारों तरीके होंगे, इस्तेमाल करेंगे। हमारा काम है कि एनेबल कर दें, जिनको सहायता चाहिए उनको सहायता मिल जाए, थोड़ा बहुत इनकम बढ़ जाए। मैं इसका वजह बता रहा हूँ, वजह इसलिए बता रहा हूँ कि ऑटो रिक्शा लखनऊ में जो ऑटो रिक्शा जो है लास्ट ये रिक्शा जो है, उसका होता क्या है कि वो आड़े पीछे सब जहाँ मन पे कहाँ खड़ा कर देते हैं। रेगुलेशन सही ना होने के कारण जो है वो हर जगह खड़ा करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा, उनको रेगुलेशन नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो मुझे ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं आप, मेरे ख्याल से आज आ गया ये रिक्शा तो ऐसा कर रही है। ये तो समस्या बहुत पहले से थी। पहले रिक्शा थे, जब गुजरते जहाँ मन था अपना आगे लगा देते थे, अब रिक्शा हो गया है, ऑटो हो गए हैं, वो तो एक समस्या है। ये तो हमारी प्लानिंग की प्रॉब्लम है। हाँ, जो मैं पहले भी बताया, आई ऑलवेज थिंक क्या करते हैं, हम सड़क बना देते हैं, फैसिलिटेट रोड्स, फैसिलिटेट मेट्रो का कहाँ होता है सड़क पे, जबकि उसको टेक्निकल्स की तरफ स्प्रेड आउट करके साइड रोड में बिछाना चाहिए। So we never think of plucking out the vehicles from the road. Instead, we try to push more and more facility to the vehicle, and that will never work. हम अभी ई-रिक्शा की कंप्लेन कर रहे हैं। I was also the advisor to the श्रीलंकन president. तो श्रीलंका में एक वक्त था जब हमने 500 करोड़ इंडिया ने श्रीलंका को दिया था फॉर इंपोर्टिंग थिंग्स। तो महिंद्रा ने कुछ चीजें बेचे थे, बजाज ने कुछ चीजें बेचे थे, तो ऑटो रिक्शास को बेचे थे इंडिया से कोलंबो में। वहाँ पे सब का कंप्लेन हुआ कि आपने ऑटो रिक्शा तो बेच दिया, ठीक है, उसके बाद उनको अपने ड्राइविंग भी इंडियन से ड्रेस खा दिया, बाकी सारे गाड़ी रिसीव करते हैं ऑटो रिक्शा के उधर जाके जाते हैं। तो ये तो That was really very interesting and very what I came to understand was कि initially जो आपका लेटर थ्रू आया था उसमें ये डिपार्टमेंट से ट्रांसपोर्ट से हम आपका कनेक्ट करेंगे, बिकॉज एक बार मुझे वाकई बहुत हिट कर रहा है दैट इज डुअल लाइसेंस। इज देयर एनी स्टेट इन इंडिया जिसने किया है? No, we just came out with these research and report. Why can't we be the first to do the dual license? That's what we would like. dual licensing एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें हम वर्कआउट कराते हैं। ठीक है, बड़ी व्हीकल्स का नहीं करेंगे, छोटे व्हीकल्स का dual licensing को इमीडिएटली फॉलो हो जाएगा। हालांकि उसके साथ साथ आपको क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोटर व्हीकल मॉडिफिकेशन भी कराओ, वो सब्सिक्वेंट क्या कर सकते हैं, जो बजट प्रोविजन आजकल किसी को आपने अलाउ नहीं करा है। इतना बढ़िया वो गाड़ी मॉडिफिकेशन करता है, इनोवा को मारता है। डीसी में समस्या कुछ और है। इसमें ये है कि जो अगेन विद द सेम मॉडिफिकेशन, no. It's ढांचा is still there. You're not changing anything. You're just adding some more safety features. डीसी को also same ढांचा तो बदल नहीं रहा, चेसिस तो बदल नहीं रहा, किसी को पता नहीं वो क्या होगा, तो वो इश्यू। और और गाड़ी में देखिए कि
डीसी का मतलब एक बिल बढ़िया है, तो क्या करते हैं इस गाड़ी को रिफॉर्म कर देते हैं और उनकी गाड़ी रिफॉर्म होती है तो भाई हाई एंड क्लास बहुत अच्छी चलती है, खूबसूरत है, सब कुछ हो जाती है, लेकिन रिफॉर्म होने के कारण उसका इंश्योरेंस नहीं। उसमें पता नहीं कि मतलब अगर किसी को मारेंगे तो क्या क्या उसका इफेक्ट होगा, होमोलोगिफिकेशन जो बोलते हैं वो होगा। इसमें फिर ये ऑटोमोबाइल्स की होना चाहिए, बैठने की सीट कैसे होनी चाहिए, जो सामान लादो तो सीट कैसे हो जानी चाहिए, ज्यादा करेंगे तो फिर आगे नहीं चल पाएगा, चलेगा नहीं, ज्यादा सोचेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि अभी भी तो चल रहा है, तो गूगल रॉकेट डाल के ले आते हैं। हाँ गूगल ऐसे वही तो मैंने सबसे पहले कहा था ना कि हम जो इलीगल चल रहा है उसको लीगलाइज करना चाहते हैं, एक बार स्टेप आगे हो सकता है जिसमें हो जाता है। ये डबल लाइसेंसिंग पे जरा बात करेंगे, अभी इसको पुशअप करिएगा, मैं अपनी रिपोर्ट जो बनेगी सर्कुलेट होगी उसमें भी मैं लिख दूंगा कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के स्तर पे अगर इसमें जो आप पत्र भेजेंगे थोड़ा सा आपको उसमें क्या क्या बिंदु और चाहते हैं आप लोग? तो मैडम मैं हम नहीं चाह रहे हैं, हमारा का ये है कि आप एक एडवाइजर हैं फ्रीलांस, आपकी एडवाइस आपको अच्छी लगती है तो आप ले लीजिए, और अगर आपको लेना है एडवाइस उसके लिए आप ना तो एफर्ट कर रहे हैं नहीं आपसे पैसा मांग रहे हैं। अगर आपको ये एडवाइस अच्छी लगती है तो आप ले लीजिए, आगे बिल्डअप करना तो आपकी हेल्प होगी। और एआई और मशीन लर्निंग में जो समाज कल्याण में पॉइंट बेस की है वो ये जो यूजर की मैं प्लानिंग से हमारी टीम में जो फैमिली कर रही है तो उसके साथ में आपको ऑनलाइन करना है। सो आई एम टेकिंग टू टेकअवेज, वन इज दैट मैनेज की टीम जो फैमिली हमारा आईडी कर रही है उसके साथ में आपका टेक्निकल सेशन, सेकेंडली आई विल कनेक्ट यू टू ट्रांसपोर्ट टेक्निकल सेशन, टेक्निकल सेशन लेट देम टेक अ डिसीजन इफ दे वांट टू। And third is ki now I can understand that there are at least 20 departments that should have been involved. So tourism, agriculture, housing, urban development, mining, panchayati raj, planning, parivahan, town development, even police, health, education, technical education, all should have been involved. So let us see if we can in future come up with some online work. Yeah, so I repeat again, I will be concluding the meeting today. So there is some more presentation. Acha, Some want to be one. I think half an hour more will this finish. acha, Okay, only hand out, so this is important. You were talking about it. There are two things. Because बहुत सारे प्रश्न उठे थे, हमने फिर उसको push out किया। So एक था जो चीफ सेक्रेटरी ने कल बताया था कि ओपन डिजिटल इकोसिस्टम। So let me just start with the first thing कि भारत में और यूएस में जो डिजिटल इकोनॉमी है उसमें क्या फर्क है। यूएस हमारे पास गूगल, एप्पल, मेटा, फेसबुक सब कुछ आता रहता है। हमारा डिजिटल इकोनॉमी क्या है, यूपीआई, डिजिलॉकर, ओएनडीसी, ये सब है। क्या फर्क है इनमें? ये तो ना, ये यूएस का है, ये हमारा। फर्क ये है कि ये सारा प्राइवेट सेक्टर ने किया हुआ है, ये सारा सरकार के वजूद पे हुआ है ना। तो ये क्यों फर्क है? क्योंकि यूएस में पूंजी है तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो पूंजी उठाते हैं मार्केट से और $10 बिलियन, $15 बिलियन डाल देते हैं। ओपन एआई में $15 बिलियन डल चुका है उसमें। तो $15 बिलियन तो कुछ हमारे स्टेट्स का जीडीपी भी नहीं है, स्टेट जीडीपी भी नहीं है, तो वो स्टार्टअप्स में डल चुके हैं। सो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है जैसे इंडिया में, सरकार का बहुत अहम महत्व है कि वो हेल्प करे कि ये सिस्टम्स बने। अब देंगे स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, तो सरकार ने शुरू किया था, प्राइवेट सेक्टर में ये सब हो नहीं पाता। तो हम जितना भी स्टार्टअप बोल रहे हैं वो देंगे छोटे स्टार्टअप। हमारे कौन से स्टार्टअप बाहर गए हैं? बाहर से तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ से कौन गया है? कोई नहीं गया, बहुत कम गए। तो जो हमारा कहना ये था कि हमने ये रिसर्च किया कि अगर सरकार अपने सिस्टम्स छोटे करके खोल देते हैं मतलब अगर उसको अगर वो सिस्टम स्टार्टअप्स को दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है, तो उसके ऊपर काफी कुछ बना सकते हैं। तो उनका जो बेसिक कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, तो उसके ऊपर वो काफी कुछ बना सकते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन था उसमें था कि अगर इंडिया अपना ओपन सोर्स बना देते थे अपने सिस्टम्स को, सो $147.59 बिलियन वुड हैव गॉट एडेड इन 2019, जो करीब 5% ऑफ जीडीपी है और 5% ऑफ द एंटायर जीडीपी। अगर आप डिजिटल इकोनॉमी देखते हैं वो बहुत बढ़ेगा, जीडीपी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो 50%, 60% बढ़ जाएगा अगर हम सरकार के कुछ सिस्टम ओपन कर दें।
and it will also lead to mashed up systems. What is mashed up systems? कि हम ये कहते हैं कि ये सरकार के systems है, इसमें से हम सारा कुछ करेंगे. प्राइवेट सेक्टर बोलता है सरकार तो हमारे साथ बात नहीं करता, तो ये हमारे systems है, इसमें हम करना करेंगे. अब सरकार को भी कुछ चीजें चाहिए होता है जो प्राइवेट सेक्टर से आए. हम क्या करते हैं कि जो अमेरिकन सिस्टम्स हैं, गूगल मैप्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं. गूगल हम लेफ्ट राइट एंड सेंटर यूज करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे स्टार्टअप्स है उसके हार्डली हम कुछ यूज कर पाते हैं. तो अगर हम ये मैश्ड अप सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इस्तेमाल करे सरकार के सिस्टम्स को और वापस सरकार को और एनहांस्ड चीजें दें, so there will be a two-way flow, there will be an explosion of innovation that will happen. So this is something that the ministry also did independently. The government of India's position on the issue is captured in the white paper of National Open Digital Ecosystem. They used to call it NODES. So the Ministry of IT in the central government has also come out with National Open Digital Ecosystem. कि हम जितने हम अपने सिस्टम ओपन करेंगे उतना इकोनॉमी को फायदा है. जो मिनिस्ट्री के हिसाब से by 2030 इंडिया will have a $500 billion new economic value through open digital ecosystems. So ये कहाँ हो चुका है? जो जिसके आधार पे हमने जो एनालिसिस किया था वो था इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन IRCTC, सबने सुना होगा. उसके ऊपर ट्रैवल जायका, यात्रा शेफ, ट्रेन मैन, ट्रैवल खाना, मेरा फूड, ओ मित्रा, बहुत सारे स्टार्टअप इसके ऊपर हो चुके हैं. अब ये संभव होता ही नहीं अगर ये नहीं होता. ये है तो ये संभव है. और कितने कितने मिलियंस ऑफ यात्रियों को ये फायदा हुआ कि ये सारे थे यहाँ पे. सो इसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि इंडिया में संभव है, हो सकता है और देखना है. अब ये थियोरेटिकली तो ठीक है, बट उसमें इशू ये है कि आप जब ओपन करेंगे सारे सिस्टम तो ओपन नहीं कर सकते. उसमें प्राइवेसी इशू होंगे, गवर्नमेंट के इश्यूज होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे एंड सो ऑन एंड सो forth. So what we are suggesting in the discussion that came up with the Chief Secretary yesterday is that we can go through all the systems that UP has, figure out which ones are easy to create an API on, open up, who will use it. और एक बार open भी करते हैं उसको फिर chargeable करना चाहिए. तो UP government should charge it so that there is income coming which will not only take care of the setup but also create a separate revenue. Non-tax revenue जो हम बहुत साल से बोलते रहते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार भी एक मोनोपोली है. अगर सरकार मोनोपोली है तो फिर जो मोनोपोली का जो एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा है, सारा कुछ टैक्स से क्यों आता है. सो ये व्हाट वी यूज्ड टू कॉल एज सर्विस बेस्ड इनकम. सो द गवर्नमेंट गिव्स सिस्टम्स एंड सर्विसेज एंड यू स्टार्ट गेटिंग इनकम आउट. इसमें सर हम लोग इनको लिंक कर देंगे जो घटक होगी हमारी. तो जो हम लोग अभी एक वो कर रहे हैं कैसे हम अपने टेस्ट स्कोर बढ़ाएंगे, तो हमारा रेगुलेटर होता है जनरेट यूपी का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, तो उसमें भी इस पॉइंट को रखा जाएगा कि एक पॉइंट ये भी हो जाएगा. बिल्कुल. मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ. कल जब चीफ सेक्रेटरी के साथ बात हो रहा था तो कुछ और लोग आए हुए थे जो दिव्यांग थे, तो उनका दिव्यांग के साथ कुछ समस्याएं थी. लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी दिव्यांग चाहिए होता है. अब कोई डेटाबेस है ही नहीं, और इंडिया ने ग्लोबल फोरम में had signed this agreement कि we will keep a database of divyang, of people who are challenged. And India has got one of the highest number of challenged people. We got 11 million visually challenged, 11 million, highest in the world. And then if you take all the challenged people. I was giving him one example of this restaurant that had opened up, a series of restaurants in Mumbai, which is called by Mime. Mime मतलब बात नहीं करेंगे, हाथ से दिखाएंगे. क्योंकि सारे waiters cannot speak, none of them can speak. The limited point is ये जो initiative है वो private sector नहीं कर सकता कि database क्या है. अगर सरकार बना के वो दे देती है, फिर जो दिव्यांग है उनको भी फायदा है, जो बाकी इंडस्ट्री उनको भी फायदा है, और उनको टारगेट रखना होता है कि एटलीस्ट इतना परसेंटेज दिव्यांग हो, इतना परसेंटेज ये हो. So limited point is this: government has a capability. Some of it you can simply open, and therefore if you open it up, lot of businesses can be created. कैसे होगा वो नहीं पता. जैसे आपके साथ भी जो चर्चा हो रही थी, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो नहीं पता, बट आप दे तो दीजिए, तो देखिए. Any questions or I'll move forward? So this was one I want to share. The second is about cloud adoption. So again, everybody knows about cloud, everybody knows all the issues. Essentially, the focus that comes in कि जो projects चाहिए हमें कल तक चाहिए,
ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि अगले 3 हफ्ते में खत्म कर दीजिए, अगले 4 हफ्ते में खत्म कर दीजिए, वो चैलेंजिंग हो जाता है। और फिर होता है कि जो डेटा आएगा, जैसे अभी आप बता रहे थे, यहाँ से डेटा आएगा, वहाँ से डेटा आएगा, वो कंबाइन होगा। अगर सारे डेटा अलग अलग जगह रहेगा, तो getting the the web services and so on becomes very difficult. To integrate them becomes very difficult. And third is cost keeps going up. Vendor locking starts happening. अपने सर्वर कहाँ से खरीदा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर स्टैक है वो भी आपको वहीं से लेना होगा, और वो उसी में एक हाथी बन जाता है कि कौन सा सर्वर होगा, कौन उसको देखभाल करेगा, and so on and so forth. So answer to all these 3 challenges is very simple. Move to cloud. Again, something that all of us know. There's nothing new I'm talking about. I'm just putting it in the perspective of what is pushing the government, right? And सरकार के ये 3 बहुत ही अहम होते हैं. Correct me if I'm wrong, sir. These are usually the pressures that come in. Absolutely. And therefore, moving a little more aggressively towards cloud helps governments, and we just want to put that on the table. Everybody else is doing so, all other within India, outside India. How do you define government cloud? So, good question, and we know all the discussions going on. I am managing data center also. So I have the critical data. Then why I should maintain cloud? So, are you discussing the hybrid model? No, I'm talking about cloud only. Within that everything. Within the cloud, everything. But the first question you asked is, what's the difference in cloud and a data center in that sense, right? Why cloud? Because it's easy to scale up and scale down. So the departments can themselves go in and start using more, processors. So right now, if you can use a pen, right now you will have dedicated servers, or one server divided into a few virtual servers and given dedicatedly to various departments. If they are not using that processing power, it's the same as the auto rickshaws. They're lying idle, Java, in the data center or outside. So it's an aggregation. So cloud essentially aggregates it. If you're not using certain processing power or memory, it'll then allocate it to another department, and then you can use it. So the cost comes down. That's all. Right. So Cisco already has this solution. Many people. Open source is also there. Open source will be. I would always recommend an open source. Yes, आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो डाटा हम रखते हैं सरकार वो गवर्नमेंट क्लाउड में उसको पे एज यू गो सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आप बताना चाहिए. जब भी आपको अपना डाटा रखना हो पैसा दीजिए और खरीद लीजिए, जब आपको नहीं देना आपको छोड़ दीजिए. जैसे बेनिफिट डिलीवरी जो हम बात कर रहे थे, वो कभी-कभी जो साल के एंड में है, वहाँ पे डिस्बर्सल ज़्यादा हो जाएगा. सो आपको कंप्यूट पावर तब ज़्यादा चाहिए होगा, तब आप उसको हायर कर लीजिए और उसको बाद छोड़ दीजिए. ट्रांसफर कमीशन है हमारा मानता है जिसमें उसको 14 लाख 20 लाख एक घंटे 24 आवर्स में वो डाउनलोड कराने हैं एडमिट कार्ड्स एग्जाम रिजल्ट्स एग्जामिनेशन एट दैट टाइम दे नीड अपने डाटा सेटअप करते हैं तब सारा लोड बैलेंस करके सारा इंफॉर्मेशन इनको कम 20-25 डॉलर सेंड कर देते हैं. सो दैट हेल्प्स. सो उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं. फिर इसमें और ओपन सोर्स में है तो दैट्स नॉट. सो नेक्स्ट वन इज ऑन ब्लॉकचेन, बिकॉज़ आपके तरफ से भी काफी सारे प्रश्न थे कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड. ब्लॉकचेन में से यूज हो रहा है. बाकी से आप बात करेंगे गोल्ड वाले जी उन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन आप पर टाइप करा सकते हैं बहुत बेहतर कर सकते हैं. खतौनी और राजस्व रजिस्ट्री दोनों डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करना है. आपका खतौनी जो जहाँ घूम रही है तो सब ब्लॉकचेन में आ जाएगी. तो आपने एक बार एंट्री किया तो आपको पता चल जाएगा कि ये जमीन कितनी बार कहाँ कैसे कहाँ बिकी. हाँ सर वो तो काम है. वही लगभग. तो वो बाकी चीजों में भी आप ला सकते हैं, जैसे बेनिफिट डिलीवरी. एक आदमी को कितना बेनिफिट्स मिल रहा है उसको आप ब्लॉकचेन में डाल सकते हैं, क्योंकि एक बार वो आप अगर आप पॉलिसी डिसीजन लेते हैं तो एक्सपोज दैट, देन आसपास के लोग बता सकते हैं इसको कितना क्यों मिल रहा है. ऑटोमेटिकली दैट starts happening. So what is a blockchain? If people are not familiar, essentially it's an electronic खाता, और वो खाता इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें आप कुछ तोड़-मोड़ नहीं सकते, और उसमें जो ट्रूथ है वो उसमें आप शो करते हैं कि बहुत लोग उसको देख के उसमें जो सच्चाई है उसमें वो रिकॉर्ड हो जाए,
और वो एक बार रिकॉर्ड हो जाए उसको आप तोड़ मोड़ नहीं सकते, आप उसको बदल नहीं सकते, यानी कि पीछे से आप कुछ डाल उसको एडिट नहीं कर सकते। एडिट नहीं कर सकते, उसको ऊपर आप डाल सकते हैं लेकिन उसको आप एडिट नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट सर दो बात तीन चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो खतौनी को आप लिंक करना सारी चीजों से, एक बार दो बार तीन बार जहाँ भी वो जमीन दिखी हुई है तो उसको लिंक कर देना, जिससे कि मतलब जो गलत सही तरीके से लोग जमीनों को खरीद लेते थे वो लगभग काम पूरा हो गया। दूसरी बात जो तहसीलों वगैरह का जो ये था मैप वगैरह था, जो रजिस्टर मैप था और ये क्या नाम कपड़े का उसका मैप था, तो वो फट जाते थे, तो उस पर भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत काफी हद तक काम चल रहा है, डिजिटलाइज जो है चल रहा, अभी उसमें काफी काम हुआ जो रियल टाइम पे होना है। अवसर रहा हूँ एग्री स्टैक के इधर आए हम इसको एक्चुअली जो आप कह रहे हैं उसी की तकनीकी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जगह ब्लॉक में आपका डाटा रखा हुआ है, जब आपको एक व्यक्ति को किसी कार्य को इस्तेमाल करना है तो उसका एक चेन बना दिया और सारा उठा के डाटा आपके सामने रिफ्लेक्ट कर दिया, वही चीज आप बताना चाहिए। और आपके अभी उतना हो गया काफी डिजिटाइज हो गई है, अभी उनको और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है, उसमें आपका एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले सकते हैं। एक सेशन आप जरूर करेंगे। अभी तो सर स्टार्ट हो रहा है इनकी एग्री स्टैक योजना है ना, उसके अंतर्गत एग्री स्टैक में रेवेन्यू ब्लॉकचेन बहुत सारी योजनाएं हैं। ये वो हमारे साथ अभी हम लोग डिपार्टमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट उतना मैच्योर नहीं हो पाई है, इंटर डिपार्टमेंटल डाटा एक दूसरे से बात करता है, कमी हो रही है। एग्रीकल्चर बात कर पाए, रेवेन्यू बात कर पाए, समाज कल्याण से, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी आसान है, लेकिन वो एक बहुत हाई लेवल पर धीरे-धीरे सिस्टम मैच्योर हो गया और मुश्किल है, ऐसे नहीं कि मतलब एट ए सच ए लार्ज स्टेट थोड़ा चैलेंजिंग है। तमिलनाडु में उन्होंने कोशिश किया था कि राशन कार्ड एक हो जाए और राशन कार्ड का ब्लॉकचेन पे आ जाए, शुरू हुआ था, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाया, तो दिक्कत है। असल में वो बल्जिंग हो जाती है डाटा की, बल्जिंग है जो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, फिर पूरे डाटा बेस में सर्च करना मांगेगा तो मतलब it's got specific use cases and इसी कारणवश मैं I just want to present the tool and you all will be in a better position to know where to use it. So the purpose is just to present the tool. So जो खाता है is managed by multiple people, so it ensures that there is total net. इसमें और डिटेल्स में उसमें नहीं जा रहा हूँ कि कैसे उसको रखते हैं मैथमेटिकली, कैसे कोडिंग होता है, मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, बट इस पे आते हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे सरकार को डिटेल्स रखना होता है और उसको बहुत सिक्योरली रखना होता है। जो पब्लिक डेटा है दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, जैसे इनका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया था कोविड में, सो दैट शुड नॉट हैपन। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम्स आर इनएफिशिएंट एंड इनहेरेंटली कॉस्टली एंड इनसिक्योर। जब आप सिक्योरिटी बिल्डिंग करते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और उसका हमेशा कुछ ना कुछ तोड़ निकलता रहता है और उसको फिर आप पैच करते रहते हैं कि अब उसको कोई ना तोड़े। जब आप ब्लॉकचेन इस्तेमाल करते हैं तो सिक्योरिटी बिकम्स वेरी चीप, उसको मैनेज करना बड़ा सिंपल हो जाता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में वो तोड़ना बहुत आसान होता है। When the government relying on blockchain technology could simplify the management of trusted information, the state can do so while protecting against unauthorized access and data manipulation. So जहाँ पे आपको पक्के रिकॉर्ड चाहिए वहाँ पे ब्लॉकचेन इज यूजफुल। बट एक चीज आप याद रखिए, मतलब ध्यान में रखिए दैट ब्लॉकचेन इज यूजफुल व्हेन देयर इज नो known authority. If there is a known authority, then you really don't need a blockchain in that sense. If in some cases there is centralized data, there is no point in distributing it. It's only when you want to have security in the government, you want to make sure that nothing can be changed, and those records are very important. That's the time when blockchain fits in. So it leads to transparency, accountability, क्योंकि सबको दिखता है। जो ब्लॉकचेन है वो सिर्फ सबको दिखेगा। जैसे बेनिफिट्स डिलीवरी में अगर आप उसको ब्लॉकचेन में डालेंगे तो सबको दिखेगा कि किसको क्या मिला है। तो अगर किसी को नहीं कुछ मिलना चाहिए, उसका जो नेबर है वो पॉइंट आउट कर देगा इसको इतना क्यों मिल रहा है। एफिशिएंट एंड सिक्योर डेटा मैनेजमेंट यही समाज कल्याण का सबसे बड़ा उपयोग है।
दुनिया को पता चल जाएगा जिसको उसको मिला, बस यही है। तो हमको पब्लिक डोमेन में डालना है। सर पढ़ा है सर सारे बेनिफिशियरी के लिए। वो आप लिस्ट डालते हैं यहाँ पे दूसरे तरीके कोई जैसे मीडी कौन वही उन्होंने सबसे पहले बताया कि एआई से आप निकाल सकते हैं कि मीडी कौन है, और ब्लॉकचेन से आप यूज करके निकाल सकते हैं कि लोग ये देखो उसको मिला, जिसको कंप्लीट करने वाला पंचायत। बिल्कुल। Efficient and secure data management. Bought cheaply, the data can be saved, streamline government processes. Because you can also do things like कि जैसे ही काम हो जाए पैसा ऑटोमेटिकली निकल जाए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो आप बिल्ट इन कर सकते हैं। सो काफ़ी बार ये होता है कि हमेशा यही होता है कि जो वेंडर्स होते हैं तो जितना भी खर्चा होता है उसके बाद 20-30% जोड़ के देते हैं। जब सरकार को जो ऑफर आता है वो हमेशा 20-30% ज़्यादा होता है, मार्केट में कम होता है। तो उसका जवाब बहुत सिंपल है कि सरकार से जब तक पैसा आता है वो 1 साल निकल जाता है ऑन एन एवरेज। 1 साल में जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो उसको भुगतना पड़ता है, तो वो उसको जोड़ देता है, तो जो सरकार के पास आएगा वो ज़्यादा होता है। अगर सरकार को बाय हैज टू रिड्यूस कॉस्ट पे 10-15%, वन सिंपल थिंग इज स्टार्ट पेइंग इमीडिएटली, देन पुट इट इनटू अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि जैसे आपका डिलीवरी हो जाएगा, सब अप्रूव हो जाएगा, आपको इमीडिएटली पैसा मिल जाएगा विदाउट एनी अदर इंटरवेंशन। दोज थिंग्स कैन बी डन, पॉलिसी ड्रिवन। द टूल इज दिस, ये सिर्फ हथौड़ा है, आपको डिसाइड करना होगा आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। Citizen identity management, same thing, where if you can't use Aadhaar, you can use this. This can be used as another way of creating a citizen identity, which is UP-centric citizen identity. So, where all blockchain has been used, Chinese ने उसको युआन को blockchain में डाला हुआ है, RBI ने भी रुपी को blockchain में डाला हुआ है, CBDC बोल के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एस्टोनिया ने सारे डॉक्यूमेंट्स ब्लॉकचेन में डाला हुआ है, सब कुछ ब्लॉकचेन में और सब पब्लिक में है। आइल ऑफ मैन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर रहे हैं, जो पेमेंट्स के लिए, वेंडर पेमेंट वगैरह के लिए वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डाले हुए हैं, तो उनका जो टोटल खर्चा है वो अबाउट 8-9% कम हो गया इसके कारण। ई वोटिंग सिस्टम इन डेनमार्क, ये तो खैर यूपी में कोई इसका इम्पैक्ट है नहीं, बट जस्ट टू गिव यू कंफर्ट लेवल की सरकार यूज कर रहे हैं, ग्लोबली यूज कर रहे हैं, वोटिंग के लिए डेनमार्क में यूज कर रहे हैं ताकि सबको दिखे कि उन्होंने वोट दिया हुआ है। क्या वोट दिया हुआ वो नहीं दिखता, लेकिन वोट दिया हुआ है। सिमिलरली डिजिटल करेंसी इन वेनेजुएला, सो ये सारी चीजें यूज हो सकता है। सो बेनिफिट्स फॉर यूपी गवर्नमेंट, जैसे आप कर ही रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, आप ऑलरेडी पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कर रहे हैं फॉर रूफटॉप सोलर, दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट वंस इन एंटायर कंट्री दैट यूपी इज डूइंग यूजिंग ब्लॉकचेन। सो आप ऑलरेडी कर रहे हैं इसको। गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज, आपके क्या क्या चीजें म्यूजियम में पड़े हुए हैं उसका कोई लिंक ही नहीं है, तो उसको क्या हम टोकन बना के उसको हम रिकॉर्ड में डाल सकते हैं कि ये चीजें हैं इन म्यूजियम में, तो उसका एक ब्लॉकचेन बन जाता है कि ये सारे जो है टोटल यूपी का कल्चरल हेरिटेज है। फॉर दैट मैटर कितने चेयर्स हैं इस बिल्डिंग में हमें नहीं पता, कौन सा चेयर क्या है हमें नहीं पता, तो उसको अगर हम टोकनाइज करके डाल देते हैं तो फिर हम उसको ट्रैक रख सकते हैं कि ये चेयर है, ये वाले चेयर कंडेम हो गए हैं, these will be written off and maintained in a complete blockchain. Then data security and privacy. So these are the use cases. We thought we'll share it with you also because it links back with benefit delivery. So all of it is kind of one set of solutions that we were talking about. I, with your permission, will just summarize the 4-5 things we said. One is explore the possibility of adopting open integrated benefits delivery system, that AI-based benefit delivery system. There are stuff lying in open source. There are stuff that others have done who are willing to contribute. We'll be happy to facilitate that discussion to happen. Consider dual licensing of auto rickshaws to enhance income levels of auto rickshaw drivers. That's going to make a significant immediate impact on people. Consider adopting cloud infrastructure for a digital UP for rolling out solutions quicker, cheaper, and in a whole of government manner, which is joined up government. So as and when the departments come in, it's much easier to create the web services to connect them. Explore the possibility of creating open systems based on UP's government digital systems in order to boost the digital economy of UP. And lastly, explore use of blockchain for secure and scalable
record systems for UP. We have also proposed that we can hold this kind of a session every 3 months. If that's of any use and benefit to the UP government, we'll be happy to come back and do that. So thank you, and open to any more questions. आपने किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आपने जो हम लोग बात करें तो आप अभी समराइज कर दिया। ये पूरा प्रेजेंटेशन आपको देखना चाहिए। मुझे लाइसेंस से आपने कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन बेस तो मुझे लगता है जैसे हमने ऑटो ड्राइवर्स का एग्जांपल, इसमें मेन रोल तो बड़ी इंडस्ट्रीज का है। एक उन्होंने ओला उबर होता है, बिजनेस हो गया, जितने भी हमारे एजुकेशन होते हैं पहले हम लोग कुली करते थे, उन्होंने सारी चीजें डाली, सब व्हील वाली हो गई, हम लोग तो एक्सप्रो करते हैं उसी देर तो परिवर्तनशील है। जिस समय ओला उबर आया हम बड़े खुश थे कि लोगों को एग्रीगेटर बन रहा है, उसको जो है जॉब मिलेगी, कार एग्रीगेटर। ओला ने एक आइडिया लिया कि हम अपनी कार खरीदेंगे ही नहीं, आपसे कहा सबसे का कार खरीदो, हम एग्रीगेटर। और उनकी प्रॉब्लम ये मेट्रो स्टार्ट हो गई है कि म्युनिसिपल लोग बैठते हैं, वो मेट्रो में बैठ के चले जाते हैं, उनका बिजनेस ठप हो गया था। परिवर्तनशील समय है। आप दूसरे एग्रीगेटर की बात कर रहे हैं कि ड्राइवर को प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन मिल जाए, उस तरफ जाने वाले पीक आवर में जितने भी लोग हैं, वर्किंग आवर वाले में हम गाड़ी में चले जाए। ये सब तो नए आइडियाज आते रहेंगे। ओला जब आए तभी हम खुश थे, आज 10 साल बाद हम लोग ने कहे बेचारे ऑटो रिक्शा वाले नो पॉइंट। ये तो परिवर्तनशील है, तो हमको करना ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं खाली समय था तो 30 अगले अपनी प्रपोजल आया था कि हम सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और वो लोग मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कि हफ्ते में एक दिन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया करेंगे। उसमें तो सब लोग मांगी लोग दिया है सर, हमारा स्ट्रांग ही नहीं इतना ट्रांसपोर्ट की इतने सब लोगों का लोड ले सके। मैंने आपसे शुरू में आपसे प्रोफेसर उत्तर आपसे बात कर रहा था, मैंने यही कहा कि हमारा सिस्टम कहता है कि गाड़ी खूब रखो, मोटरसाइकिल चलाओ, सस्ती लो, लोन लो, कार खरीदो, लेकिन हमारा सिस्टम ये नहीं कहता कि गाड़ी सड़क से हटाओ कैसे। हटाने का तरीका वही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग हो कि हमें अपने घर से गाड़ी निकालने की जरूरत ना पड़े। एक तो पड़े ना, दूसरा हम निकालने ना दें। जैसे आप लंदन में जाइए तो आपको दिन भर में 1300 रुपया लगाना पड़ता है, 13 पाउंड पर डे यूरोप में। लेकिन फिर वो आसान है कि आप गाड़ी से जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ सुथरा आपको मिलेगा। और उसको दूसरा तरीके से क्या कि आप कार से भी जा सकते हो, 1300 को तुम 1300 लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा आ जाओ, लेकिन जब तुम पार्किंग करोगे तो तुम 4000 रुपये पर घंटा लेंगे, 40 पाउंड पर आवर। तो उन्होंने एक तरह से हमको फैसिलिटेट किया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम आसान, आओ गाड़ी मत निकालो, फिर भी अगर तुम निकालते हो हम तुमको लूट लेंगे। इस तरीके से उन्होंने गाड़ियों को सड़क से बाहर निकाला। हमारा कंसेप्ट अभी तक क्या चल रहा है प्लानिंग का कि हम सड़क चौड़ी कर दें, आज 6 लेन है तो 8 लेन कर दें, 8 लेन है तो 12 लेन कर दें, अंडरग्राउंड कर दें। ओवरब्रिज क्या होता है, जाम यहाँ निकल रहा है, लग रहा है, तो उस जाम को हटा के वहां लगा दें बस। ओवरब्रिज इज जस्ट शिफ्टिंग द जाम, नॉट क्रिएटिंग एनी सॉल्यूशन। सिविल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम को होना है, आईटी कानपुर और आईटी दिल्ली तो आईटी रोटी के साथ साथ देयर बॉसेस, सो दे नो ओवरब्रिज इज नो सॉल्यूशन एक्सेप्ट टू शिफ्ट द जाम। Anyway, I should write boss to upload. My manager was Same here. I'm also an electrical engineer, communications engineer. My boss, chief secretary, is an electrical engineer. Anyway, so completely understand. तो सर we have got 7 deliverables. आप हमसे ये सारे शेयर करेंगे और जो वर्टिकल्स आपने पॉइंट आउट किए लास्ट समरी में इसको हम शूट करेंगे। 2 से तो हमारा अभी भी क्लियर है, अब आपने और समराइज कर दिया तो हम ट्रांसपोर्ट से और रेगुलर कैंप का करेंगे, बाकी जगह देखते हैं कैसे होगा। लेट अस सी व्हाट चीफ्स ऑफ एसोसिएशन इन फ्यूचर। बाकी में आप उसका ले सकते हैं, कल्चर का भी कल्चर टूरिज्म म्यूजियम है आपके, और आपके टूरिज्म वगैरह है, बहुत कुछ कर रहे हैं उनसे ये पता नहीं वो कर क्या है जी। आपका थोड़ा पता है आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारा काम नहीं कर रहे हो, थोड़ा करने में रहा है सारी चीजें। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
At least you have started something which we can freely come up to. क्योंकि अपना आपने मांगा है हमें आपसे कुछ देना है. Free of cost advice is always better. But Whenever we can't get to connect you to I will not know. I got this one, sir. That's what we have already because of it.